in the different appointment and the different places. Maximum my period is in Kashmir area and the Balochistan. I've spent about 10 years in Balochistan, which include, all parts of Balochistan, mainly the Quetta, Sibbi, Khuzar, Gwadar, last my posting was there as a brigade commander. I commanded Khuzar Brigade. And you can say I was, alhamdulillah, made responsible for 33% of area of the Balochistan. So Balochistan is very close to my heart. तो पहली मेरी पोस्टिंग कश्मीर में थी, वेयर आई लैंडेड इन ऑपरेशन एरिया, दैट वाज अलीपा वैली. बड़ी अच्छी मोटिवेशन थी, और करते करते फिर अल्टीमेटली फ्रॉम डिफरेंट स्टाफ एंड कमांड डिपार्टमेंट्स, लास्ट माय पोस्टिंग वाज इन GHQ. देयर आई सर्व्ड एज अ डायरेक्टर, एंड इन 2017 honorably, inshallah, alhamdulillah, I put on my uniform. So that is a small little story. उसके अंदर बड़े अप्स एंड डाउन है, बहुत सारी स्टोरियाँ. इंशाल्लाह वी विल सेट टुगेदर, इंशाल्लाह वी विल हैव अ सिटिंग अगेन where I would like to share my views with the viewers so that they can get experience on that. Coming to अच्छा जी बात कीजिए प्लीज. सर प्लीज. फिर ये एक जो ना ओवर जो ट्रेनिंग के दौरान मेरा एक पैशन था. My passion was, I said I was slightly good in education. I was not the best, I was good at education. क्योंकि प्रोसेस में मैंने मिडिल के एग्जाम भी बोर्ड का दिया, बोर्ड का सिलेक्टिव होते थे बच्चे, उनमें भी स्कॉलरशिप आ गया, मैट्रिक में भी स्कॉलरशिप आ गया, FSC भी मैंने अच्छा किया. तो एक वो आपका एजुकेशन बिकम माई पैशन. एक फौज वाली पैशन थी, एक ये पैशन थी साथ साथ. तो मुझे मौका मिला आर्मी के अंदर भी एजुकेशन फील्ड में काम करने का. उसमें काफ़ी स्कूल कॉलेजेस को मैंने लुक आफ्टर किया. आई वाज अ कमांडेंट रेंजर्स देयर इन बहालपुर. वहाँ पे मेरे साथ बगड़े एजाज नजफ थे, उनके साथ हमने मिल के एक जॉइंट वेंचर किया था. वी एस्टैब्लिश्ड इन द रेंजर हेडक्वार्टर द कैंपस ऑफ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहालपुर, विच वॉज वेरी सक्सेसफुल. उसके अलावा APS स्कूल्स काफ़ी मैंने लुक आफ्टर की. तो वो एक जेन में था कि दैट इज अ वे you can contribute. Nation has invested a lot onto us. तो मैं नहीं चाहता था कि हमारी लाइफ रिटायर हो. तो I've been never, I don't think that I'm a retired man. I still myself feel that I'm a young enough and I'm contributing, alhamdulillah. Or I say that I am grooming the young leaders of tomorrow. So that is my vision of my college also, laying the foundation for better tomorrow. Or particularly I love the daughters. बच्चियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और बिकॉज इट्स मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन. मेरी अपनी 3 बेटियाँ हैं. माई एल्डेस्ट वन इज, माई 2 daughters they are engineer, third one is in the FSC. पहली बेटी मेरी she is a computer engineer and married to army officer. She is again a lecturer and grade 17 officer. My second one is in Air Force. She is a flying officer at the moment. She is posted in Kamra and she is again contributing very positively. And I feel very good. That was my aim, to be the aeronautical engineer. I see my daughter, she is fulfilling my dream. I feel very good, very happy, very elevated. तो इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि बाकी बच्चियाँ भी करें. My third daughter is also again a pipeline. She is again, she has a role model, immediate senior, that is second daughter. She said, I want to join the Air Force again. She is preparing for this. Inshallah, after the second year, she will apply. So this is all little story coming towards, जो मेरी हिस्ट्री की बात है. आगे चलते हैं. अगर जी Sir, it's will definitely continue with you. Viewers, you may just write down your questions in the comment box. Later on, we will have the chance to ask the questions from Brigadier साहब. मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि रात को हमारी बात हो रही थी वो पोस्टर के ऊपर जहाँ पे रिटायर्ड पहले लिखा हुआ था. तो ब्रिगेडियर साहब ने बड़े मजे की बात की कि यार ये रैंक जो है ना ये कभी भी रिटायर नहीं होता. तो माशाल्लाह से ना रैंक रिटायर होता है, एंड अ पर्सन वंस अ सोल्जर इज सोल्जर फॉरएवर. तो वो एनर्जी आपकी जो है, आई डोंट रिमेम्बर और आई can't remember that once you joined that JCB and then after that PMA, लेकिन आपकी अभी भी जो एनर्जी है वो एक बिल्कुल फ्रेश कैडेट वाली है. तो इसका क्या रीजन है, और फिर आप कंटिन्यू करेंगे जो भी अपनी गुफ्तगू प्लीज. वैसे मैं आपके I take it as a compliment, right? I take it as a compliment.
अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये बेसिकली द फिटनेस इज बेसिकली द स्टेट ऑफ माइंड, आई वुड से बंदा फिजिकली बूढ़ा नहीं होता, इट्स मेंटल फैकल्टी विच मेक सिक और हेल्दी, सो बोथ वे। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू रिमेन वेरी पॉजिटिव इन योर अप्रोच, तो आप यंग रहते हैं। और पर्टिकुलरली तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, नाउ आई एम इन द एजुकेशन फील्ड, आई हैव वेरी young cadets with me, energetic, I do the activities with them right from the start till morning, we start off in the morning and we continue till end. So हमारे जो process है 24/7 है, तो I remain committed। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि my family is also totally involved in that। मैं I'll throw some light on that what we are doing, but ये just to tell you, so my wife is an educationist। वो जो कहते हैं ना कि पैशन और प्रोफेशन जब मिल जाता है ना, तो आप वैसे यंग होते हैं। सो बेसिकली दिस इज माय पैशन, टू हैव एजुकेशन। मैंने फौज में भी एजुकेशन अपनी कंटिन्यू की थी। आई डिड माय मास्टर्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस बिसाइड डूइंग द मिलिट्री कोर्सेज। अल्हम्दुलिल्लाह फौज में भी फौज ने काफ़ी क्वालिफाई करवाया, तो आई डिड अ डिफरेंट 14 कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर कोर्सेज टिल द सीनियर कोर्सेज। सो अल्लाह ने बड़ा क्वालिफाई किया। तो क्वालिफाई इतना क्वालिफिकेशन के बाद तो ये टाइम ये ऐसा होता है कि जहाँ पे यू नीड टू इन्वेस्ट, यू नीड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। दिस इज द टाइम आई थिंक सो नो आई डू नॉट हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द आर्मी। आर्मी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द डिफेंस ऑफ द नेशन, डिफेंस ऑफ द कंट्री। वो एक स्लाइटली लिमिटेड फील्ड है। Now, after putting off the uniform, so slightly I have a more open field to play, where I have more flexibility as compared to थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिफॉर्म वाली कम हो गई है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ज़्यादा ले ली है, विच वॉज माई पैशन। मैंने कहा ना, जब पैशन और प्रोफेशन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आपको सर्व करने का, कंट्रीब्यूट करने का मजा आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। तो इसमें ये एक अच्छी बात ये है कि माई वाइफ इज फ्रॉम द डे वन शी इज टोटली इन्वॉल्व। शी हैज़ अ 19 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन से। मेरी इधर आने में मेरा ख्याल है कि 90% रोल उसका भी है, because I saw the way she was committed. She'd been grooming the kids also, and she'd been contributing towards the education. She'd been working to different institutions, जिसमें सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से काम किया, और ऑफ एंड ऑन वी वुड कैरी टू लॉट ऑफ डिस्कशन एट होम। फौज में भी जब भी मौका मिला, जहाँ पे भी मेरे अंडर कमांड कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ पे शी हैड अ वेरी पॉजिटिव रोल टू प्ले। तो मुझे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं होती थी, स्ट्रेट वे आई वुड कम बैक एंड डिस्कस विद हर एंड शी वुड कंट्रीब्यूट ऑन दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, दिस वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। तो आई अप्रिशिएट माय वाइफ दैट वे एंड शी इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बेहतरीन। और जैसे आपने अपनी बेटियों का जिक्र भी किया, तो दिस इज समथिंग इंस्पिरेशनल फॉर द गर्ल्स, आई वुड से, स्पेशली द गर्ल्स इन साउथ रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। स्पेशली आई विल बी फोकसिंग ऑन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान जहाँ पे तालीम की बात होती है, तो बोला जाता है कि जी गर्ल्स की जो एजुकेशन है आज भी उस लेवल पे नहीं है जो कि बॉयज़ की है। डिस्क्रिमिनेशन भी है। हमारा जो, अगर हमारे बच्चे होते हैं तो उसमें जो बेटा है उसको एक अच्छे स्कूल में भेज दिया जाता है, बच्ची को बोलते हैं कि जी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक तो एजुकेशन की आपने खुद एक मिसाल कायम कर दी, फिर उसके साथ-साथ जो है एक ग्रूमिंग जो है उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पास जहाँ हम देखते हैं कि तालीम याफ्ता लोग तो हम बहुत सारे पैदा कर रहे हैं, लेकिन तरबियत वाले जो हैं वो बहुत कम हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। सर, आगे चलने से इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि तालीम के साथ-साथ तरबियत जो है उसका क्या रोल है? राजा भाई, मैं आई वुड से ये जो ना, जब तक हम ट्रेनिंग की बात नहीं करते ना, तो एजुकेशन इज इनकम्प्लीट फिनोमेना, इट्स अ कंप्लीट फिनोमेना, राइट। हम एजुकेशन जब बात करते हैं ना, तरबियत के बगैर एजुकेशन तो है ही नहीं। आई वोंट से दिस नो वन। हमारे पास अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने तरबियत को सेग्रीगेट कर दिया है, एंड इट इज़ नॉट बीइंग टेकन एज पार्ट ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन में हमने खाली कर दिया कि जस्ट टू अटेन द डिग्री, विन द डिग्रीज एंड यू गो अहेड, मूव अहेड, राइट। तो ये मेरे जहन में एक विजन था,
मैं इसको ऐसे कहूँगा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैं आपको शेयर करूँ। आई एम सिटिंग इन मरदान, once I was appointed as a principal. That was my first entry to Mardan. So you can well imagine, I've never been to Mardan. I've been to a different part of the country, right? I've been abroad, but never been to Mardan. तो ये इसके साथ ही मैं लेके चलता हूँ कि हाउ वी आर डूइंग इट। ये मेरे ज़हन में था कि जो तरबियत है ना बच्चों के लिए, उनको स्टीयर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि एक सिंपल मैं मिसाल देता हूँ, एक अच्छी गाड़ी भी ले लेना, चाहे BMW हो, मर्सिडीज बेंस हो, करोला हो, जब तक उसको स्टीयर करने वाला अच्छा ड्राइवर नहीं होगा ना, तो गाड़ी इट्स लाइक टू मीट एन एक्सीडेंट, चाहे मोटरवे पे चल रही हो, चाहे गली में चल रही, कहीं भी चल रही हो। सो ये जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन इज़ वन पार्ट, उसके साथ जो तरबियत है ना, जब इनको कंबाइन करते हैं तो पर्सनैलिटी बिल्डअप तभी होता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर हम इसको ग्रूमिंग प्रॉस्पेक्ट्स को निकाल दें, वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। अब डिग्री तो ले लेते हैं, इफ वी आर अनेबल टू डिलीवर, और वो डिलीवरी आती है फॉर द ग्रूमिंग ऑफ द पर्सनैलिटी, where you should be able to, slightly confident, where you can deliver yourself, you can talk to the people and whatever। देखिए, उसकी तरबियत उसी वक्त अच्छी होती है जब आप एजुकेशन को, यू कन्वर्ट दैट एजुकेशन इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड, और एक विजन के साथ उसको अप्लाई कर सकें। अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते ना, मे इट बी द वोकेशनल एजुकेशन, मे इट बी द टेक्निकल एजुकेशन, मे इट बी द मेडिकल एजुकेशन, यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स द सोसाइटी। आप अच्छे मेंबर बन ही सकते सोसाइटी के। तो इसलिए मेरे ज़हन में एक ये जो गर्ल्स एजुकेशन का है ना, मैंने ये घर से आई स्टार्ट ऑफ। मेरी बड़ी बहन थी, शी माशाल्लाह हैं अभी, शी इज़ एजुकेशन ऑल्सो। मैंने उनको देखा था कि वंस आई वाज स्मॉल लिटिल यंग बॉय, हमसे बड़ी थी, और उनमें बड़ा एक पैशन था टू ग्रूम एंड लीड, एंड लॉट ऑफ सेंस ऑफ सेक्रीफाइस। दैट वाज स्लाइटली जो बैक ऑफ माइंड आपके अंदर एक रोल मॉडल बन जाता है ना। एंड रोल मॉडल मजे की बात ये है कि टाइम के साथ चेंज होता है, इट इज़ नॉट द वन, इट्स टाइम के साथ। अब जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो इट हैज़ टू चेंज, नहीं तो लाइफ में स्टेलमेट आ जाती है। आप बचपन में एक छोटा रोल मॉडल रखते हैं, माँ होती है, सब माँ के बाद बहन भाइयों में से एक रोल मॉडल बनता है। वंस यू गो टू द स्कूल, यू फाइंड वन ऑफ द रोल मॉडल, मे बी वन ऑफ द टीचर, मे बी वन ऑफ योर कोलीग, राइट? सब्सिक्वेंटली वंस आई जॉइन द आर्मी, मैंने देखा यार मेरा कज़न है, इज लुकिंग वेरी स्मार्ट, हैंडसम, यूनिफॉर्म पहनी, मैंने कहा ज़बरदस्त, वो ये ऑल्सो रिटायर्ड मार्शल एज ए ब्रिगेडियर। तो मैंने कहा यार ये काम भी ठीक है, तो आई टुक इट एज ए रोल मॉडल। सब्सिक्वेंटली फौज में गए तो आगे रोल मॉडल चलना शुरू हो गए। तो ये तरबियत जो है ना, आपको एक विजन देती है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज करना होता है। अगर आपके अंदर ये जो इसके साथ रिलेटिव टर्म्स हैं, जो मैं आपके, जो आज हमारा टॉपिक भी है लीडरशिप, अगर इंसान के अंदर विजन नहीं है ना, कैन नॉट बी अ गुड लीडर। लेट्स बी वेरी फ्रैंक विद दैट, राइट? सो विजन बेसिकली क्या होती है? यू हैव टू मूव अहेड, you have to think ahead, you have to lead, and lead by the personal example. You should be able to sacrifice, you should be very dedicated, initiative, वो बोल रहा है ना, नंबर ऑफ क्वालिटीज विद लीडरशिप, ये होनी जरूरी है, ठीक है? जब ये चीज़ें क्वालिटी को कंबाइन करते हैं तो एक बंदा लीडर बन जाता है। तो ये जो मेरा सफ़र है ना लीडरशिप ट्रेनिंग का, ये इसी तरीके से शुरू हुआ। तो आई वॉज एट होम, आई वॉज प्रिपेयरिंग टू रिटायर, आफ्टर सम टाइम। ऐसे ही एक वन डे ऐसा एड इन द न्यूज़पेपर, इट वाज प्रोबब्ली द डॉन, और उसमें ये आया हुआ था, दो ऐड थे। एक था टू प्रिंसिपल टू द फजलिया कॉलेज, इट्स अ ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ 35 years old, सर गेन मरदान। आई अप्लाइड, आई डिस्कस विद माई वाइफ, जी अप्लाई कर दें, अच्छी बात है। तो एक जहन में वो एक पुरानी उस्तादी तो थी जहन के अंदर ना। और उसके बाद फिर एक और ऐड आया आफ्टर से 15-20 days, it was establishment of new girls cadet college. It was a vision of probably BTA government, Mr. Atiq, then he was education minister KPK, उनका vision था probably। और वो ऐड आया तो अगेन आई अप्लाई। तो मैंने ऐसे प्रोसेस में अप्लाई कर दिया, इट वाज ओपन मैरिट, ओपन कंपटीशन। बट जब मैं वहाँ पे जाके कॉन्टेक्स्ट किया, एंड आई वाज द ओनली मैन इन यूनिफॉर्म, बट आई वाज इन माय लास्ट डेज। तो प्रोसेस करते करते लॉन्ग पैनल, कटिंग शॉर्ट,
उन्होंने मेरा ख्याल शायद को मेरी बातचीत उनको अच्छी लग गई, मेरा वीएन उनको अच्छा लगा, दे सिलेक्टेड मी। और सिलेक्शन के बाद मुझसे बात करते हैं बंगिश साहब से, शराब बंगिश साहब, दैन ही वाज डूइंग ए सेक्रेटरी एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन। बंगिश साहब, व्हाट पे यू विल डिमांड फ्रॉम अस? मैंने कहा जी, आई एम इंडेप्टेड बाय द नेशन, तो फौज ने मुझे बहुत कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिस इज द टाइम टू पे बैक, आई वांट टू कंट्रीब्यूट एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट वे वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट, हाउ आई स्टार्ट माय जर्नी। उन्होंने कहा जी ठीक है। एंड अल्टीमेटली वन डे they called me, invited me in his office and said, "Bhagir sir, you have been selected after a long panel जिसमें मिनिस्टर वगैरह के जिनको इंटरव्यू के बाद you've been selected and you go ahead and launch this project after a month." टोटल एक महीने का टाइम था, तो उन्होंने कहा जी बघेड़ा साहब आ जाए, प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दें। एंड मैंने आपको कहा ना कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई नेवर बीन टू मर्दान बिफोर दैट, आई नेवर केम टू मर्दान। जिस दिन मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, दैट डे आई वाज ड्राइवर, मैंने कहा यार चलो मर्दान में चलते हैं, तो देखे सही कहाँ पे कॉलेज लॉन्च कर दें। एंड आई केम, आई सॉ दैट प्लेस, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे इंशाल्लाह, तो वील लुक इनटू इट, वील डू इट। तो मैंने जाकर मैंने कहा जी इंशाल्लाह थोड़ा सा स्लाइटली अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, बट एनीवे वील डू इट, वील डू इट। सो वो फिर ये मेरा ख्याल है कि इट वाज प्रॉब्ली 17th of April, एंड ऑन 22nd में हमने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था, एंड इट रिसीव्ड अ वाइड मीडिया कवरेज, जिसमें आई रिमेंबर 32 चैनल्स ऑफ पाकिस्तान विद द नेशनल लेवल उन्होंने कवर किया, और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। इट वाज अ गुड, एंड इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट टू बी वर्किंग हियर। उसकी दो वजह थी, एक तो ये था इलाका नया था, दूसरा हैंडीकैप ऑफ द लैंग्वेज वाज आल्सो देयर, राइट। बेसिकली आई एम नॉट पठान, तो लैंग्वेज बैरियर था, बट एनीवे आई वुड से द पीपल आर वेरी लवली, वेरी हॉस्पिटेबल, नेवर रिसीव्ड एनी ऑफ द हैंडीकैप। जब मैंने शुरू किया, द पीपल केम फोर्थ विद पर्टिकुलरली द पेरेंट्स ऑफ द कैडेट्स, दोज दे सिलेक्टेड। हमने मेरिट पे सिलेक्ट किया, पहला बैच था हमारा 74 कैडेट्स का, और वो हमने इंडक्शन शुरू कर दी। इंडक्शन के बाद आई लॉन्च दिस प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकली इट वाज लॉन्च ऑन 20th August 2017। तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा इसको प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, ताकि आपको लीडरशिप का और आगे चीज़ों का मैं बताऊं कि हाउ वी आर वर्किंग दैट, सर अल्टीमेटली आप क्वेश्चन के साथ चलेंगे। यू हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, शुड आई सर सर कंटिन्यू? सर आप वैसे तो बिल्कुल सही जा रहे हैं फ्लो के साथ साथ, बस बीच में एक छोटा सा आप स्टार्ट लेंगे तो मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि सर व्हाट इज द मिशन एंड विजन बिहाइंड दिस गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान। ओके, यहाँ से लेके हम आगे फिर चलते हैं। सो ठीक है। सर प्लीज। देखो ये आई कॉल इट्स ए यूनिक प्रोजेक्ट, a unique project and a mega project with the futuristic vision and approach. ये इसमें एक vision थी, और vision once I started working on that, and I took a lead from the Qaeda, right? And his quote is, I would like to quote here, right? So no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you, unquote. And he said so in the Peshawar in one of the address, जब immediately independence के बाद जब पेशावर यूनिवर्सिटी में आया था, एड्रेस किया था, this was the quote. तो बेसिकली जो मेरा एक मिशन था ना, एक मिशन हमने इसी के अंदर से ड्राइव किया। बेसिकली मिशन क्या था? टू ड्राइव द मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन टू द यंग लेडी कैडेट्स एंड ग्रूमिंग देम इनटू द फाइन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान with the aim to serve in the leadership role. This is very important, This is the underlying point. To serve in the leadership role in the variety of professions, including armed forces. ये हमने लिमिटेड ये नहीं रखी कि it is the armed forces. It is one of the clause to serve in the armed forces for the achievement of national development goals set forth exclusively by as per the direction given to me by the KPK government. ये हमारा basically aim था। तो I thought of it, my vice principal, we sat together, a lady vice principal थी मेरी, now she is working as a principal in APS quad. I would like to appreciate her, मेरे साथ बैठती है अकेली, और अच्छी उससे गपशप होती थी। शी इज़ अ विजनरी लेडी। बैठ के जब हमने मोटो ड्राइव किया, मेरे मोटो जहन में एक था, मैंने कहा यार कि एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे यू शुड बी एबल टू सेट द हाईएस्ट पॉसिबल एम। तो मेरे जहन में अल्लामा इकबाल का वो शेर आया, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, स्टारों पे डालते हैं कमान।
तो वो और साथ कॉम्बिनेशन बनी को अल्लाह ताला ने इस में एक विजन दी, इकरा, इकरा इज टू रीड द फर्स्ट वर्ड ऑफ होली कुरान। सो दिस कॉम्बिनेशन, सो हमने एक इसका विजन बनाया। जो हमारा मोटो था, मोटो वी सेट फॉर द कैडेट कॉलेज इज द इकरा विद अ व्यू टू रीच फॉर द स्टार्स। कि लिमिट कोई नहीं है अभी बचे, इफ यू कम यू थिंक का है। और जब आपका एम हाई होगा ना, तो यू कैन सेट स्मॉल लिटिल ऑब्जेक्टिव्स। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जब अटेन करते हैं ना, तो दे अल्टीमेटली सेट यू, लीड यू टुवर्ड्स अ परमानेंट गोल, जो अटेनेबल हायर गोल होता है। तो दिस इज बेसिकली जो मेरा एक मिशन था, जो कि कैडेट कॉलेज को हमने मिशन दिया है ड्राइव करने के लिए। और इसमें मैंने कहा है कि बेसिकली मिशन क्या है। तो मिशन में बेसिकली हमने जो एक विजन डाली, और विजन क्या था, टू ट्रेन एंड ग्रूम द यंग लेडी कैडेट्स and make an effort that they improve and transform their lives, ensuring that they excel in their endeavors. मतलब ये जरूरी नहीं है कि बेटे तूने फौज में जाना है, ये जरूरी नहीं है कि तुमने टीचर बनना है, ये जरूरी, बट देयर इज स्काई इज अ लिमिट, स्काई इज अ लिमिट। और मैं इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ एक इंसिडेंट कोट करूंगा। AFP वाले आए, दे वर मेकिंग वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इन इनिशियल डेज इन 2017, नया नया कॉलेज बना। तो वंस मेरा ये होता था, मैंने कहा ना कि ग्रूमिंग ट्रेनिंग प्रोसेस इज 24/7। आई रिमेन विद इन द कॉलेज, आई रिमेन विद माई कैडेट कमिटेड। अभी भी मेरा कमिटमेंट उनके साथ चलती है। वी हैव द ऑनलाइन क्लासेस, वो हम बाद में बात करते हैं, बट एनी रिस्पेक्ट हो जाएगा, बातें बहुत सारी हैं शेयर करने के लिए। तो उन्होंने जब मैंने कहा जी ये मेरे बच्चियां हैं, इनके साथ यू टॉक टू देम। एंड वन ऑफ द फॉरेन लेडी, शी वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कैडेट। उसने कहा जी व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, शी सेड आई वांट टू बी द आर्मी चीफ। तो आई वाज स्लाइटली टेकन अबैक, दिस वाज एम सेट। और मैंने उसको मैंने कहा जी वो देखें बच्ची है, कहना नहीं सर ठीक बात है, ठीक है। और मैं खुद आई वाज स्लाइटली फेल्ट एलिवेटेड कि इतनी जल्दी इन बच्चों के अंदर वो विजन आ गया है, दे आर स्टार्ट थिंकिंग अहेड कि यार ये भी हो सकता है। और फिर मैंने उसके साथ एक वर्ड ऐड कर दिया कि जी लाइफ में देयर इज नो वर्ड नो, नो का वर्ड नहीं है। वी कैन थिंक वी कुड बी द विजनरी वन। अगर हमने एक एम सेट कर लिया है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी डालनी बहुत जरूरी है। इफ यू आर कंटिन्यूस इन योर हार्ड वर्क, वो ये मुझे फिर ये विजन कहाँ से मिली है, कुरान पाक से मिली। तो अल्लाह ताला खुद कहता है लईसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है जिसने जितनी कोशिश की उसको मैं दूंगा। वो भाई एफर्ट तो करो ना, जब एफर्ट करोगे तो मिलना शुरू हो जाएगा। और एग्जैक्टली वो उस बच्ची का जो विजन था ना, आई टेल यू it has been so well received. The article written on the Cadet College, I must just like to share with the viewers and for you also. The Pakistan girls dream to take part. ये आर्टिकल का टाइटल है, and it has been published alhamdulillah in 65 countries of the world about the girls category Mardan. ये आर्टिकल लिखा गया, it's in English, it has been translated in different languages। और मजे की बात ये है, ये आर्टिकल इंडिया में भी पब्लिश हुआ दो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, वन इज टाइम्स ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज हिंदूज। और पाकिस्तान में तो हर जगह इन्होंने पब्लिश किया। सो उसमें उस बच्ची का विजन जो ना, इट इज आई वांट टू बी द आर्मी चीफ। मैंने कहा जी व्हाई नॉट, टाइम चेंज होते कौन सी देर लगती है भाई, आर्मी चीफ नहीं बनोगी सेंटर में जनरल तो बनोगी ना, यू शुड बी एबल टू मेक दैट। और सीइंग दैट ओवर बाकी बच्चों ने भी दे स्टार्ट सेटिंग देयर गोल्स, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा जो कैडेट कॉलेज जब हमने इस्टेब्लिश कर लिया, तो इसमें एक हमने रूल्स सेट कर लिए कि हाउ वी हैव टू गो अबाउट द एजुकेशन। इसमें जो एजुकेशन, मेरा ये एम ये नहीं था कि एक बुकिश एजुकेशन हो, आई वांटेड टू गिव अ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो 4 चीज़ें मैंने सेट की जो एग्जाम में विद एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव लर्न थ्रू माय बीइंग इन आर्मी, जो अपने पैशन के साथ। वन इज एकेडमिक्स एक्सीलेंस, कि जो हमने जो तालीम हासिल करनी है, इट हैज़ टू बी द एक्सीलेंट वन, इट नॉट बी द बुकिश, साइड बाय साइड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हमने देखना है। वो मैं अब बाकी हाईलाइट कर दूँ कि कैसे। सेकेंड वॉज द पर्सनैलिटी बिल्डअप, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यंग लीडर्स। सो लीडर, मैं लेडीज़ को इसलिए प्रेफरेंस देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर इन बिल्ड क्वालिटीज़ दी है। इसलिए कहते हैं द फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ अ चाइल्ड इज द लैप ऑफ अ मदर।
एक माँ शुरू करती है उसकी एजुकेशन ग्रूमिंग, और घर के अंदर शुरू होती है। और नेपोलियन ने कहा था ना, आई वुड लाइक टू कोट हियर, गिव मी द गुड मदर, आई गिव यू द गुड नेशन। बेसिकली हमारे यहाँ इस चीज में थोड़ा सा आई वुड से लैग था एस्पेक्ट, तो आई टुक दैट वे एंड इट हैज बीन टेकन वेरी पॉजिटिवली, ऑल्दो द सोसाइटी वाज वेरी कंजर्वेटिव, द केपीके, यू नो, फिर पर्टिकुलरली मर्दान, हाईली चेंजिंग इन्वायरमेंट, उन दिनों में हालात भी आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है अभी तो वेरी कंफर्टेबल हो गए। तो उसमें मैंने भी एम सेट करने शुरू कर दिए ना कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। वन इज एकेडमिक एक्सीलेंस, सेकंड वाज द पर्सनालिटी बिल्डअप, तीसरी चीज मैंने कहा द फिजिकल डेवलपमेंट। वो जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था ना कि मेरा विजन क्या है, जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस। बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? देखिए, जब तक यूर फिजिकली यूर नॉट फिट, यू मेंटली कैन नॉट बी फिट। आप कितने बड़े भी इंटेलेक्चुअल बन जाए, अगर आप बात ही नहीं कर सकते, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपको साथ नहीं देता। ये आई लर्न इन आर्मी, आपने देखा बड़े बड़े अच्छे जनरल दे आर सपोज्ड टू बी द फिजिकली फिट वन। जनरल बाजवा की देख लें मिसाल, यू नो, टॉल स्मार्ट हैंडसम माशाल्लाह, अभी भी यू नो आई बीन वेरी क्लोज टू हिम माशाल्लाह, और वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और दे स्टिल यू नो फिजिकली फिट। सो मेनी जनरल्स इन द आर्मी, दे आर कंट्रीब्यूटिंग दैट वे। तो वो फिजिकल स्टैंडर्ड हमने एक सेट किए कि बच्चों को एक फिजिकल स्टैंडर्ड देना जरूरी है। नॉर्मली बच्चियों का एक होता है कि लथार्जिक लाइफ, घर में पढ़ना पड़े रहना, फिजिकल स्टैंडर्ड की तरफ जरूरी, ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हमने विच शुड बी अटेनेबल। और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी मेरे जहन में वो थी इनकल्केशन ऑफ रिलीजियस एंड द नेशनल स्पिरिट। ये मैंने करिकुलम के साथ ऐड कर दिया। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कुरान, I want to learn the religion. I'm still learning the religion. It's incomplete with that. वो ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आई एम लर्निंग फ्रॉम माई कैडेट्स, आई एम लर्निंग इन द कुरान क्लास। ये हमने मैंडेटरी कर दिया कि कुरान को भी सीखना चाहिए। इट्स नॉट पार्ट ऑफ लेड ऑन करिकुलम बाय द गवर्नमेंट, बट आई मेड इट फॉर माई कैडेट, इट इज मैंडेटरी। वी डेली हैव 1 hour कुरान क्लास, जिसमें I set myself, my faculty sets, my one of the religious teachers, she's Alma, she's been a regular student in the university, so moderate practicing Muslim, she sets, जिसमें हम बात करते हैं कुरान पाक की बात करते हैं, हम 2 से 3 आयत पढ़ते हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी बात करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, और उस जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला एक विजन दे रहा होता है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द कैडेट, हम उस पर बात करते हैं कि जी इसका हमारी जिंदगी में क्या असर है, मेरी जिंदगी में क्या असर है एज ए प्रिंसिपल, इन बच्चियों की जिंदगी में क्या असर है जो कि टीचर्स हैं, और उन बच्चियां जो कि साथ मेरी कैडेट बैठती हैं उनकी लाइफ पे क्या एप्लीकेशंस हैं, और पर्टिकुलरली वंस दे आर विद द फैमिली मेंबर्स उनकी लाइफ पे क्या असर है, एंड हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो अल्टीमेटली वी आर लीडिंग टूवर्ड्स आर गुड लीडर्स, ये हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक साथ बेसिकली मैंने कहना 4 चीज़ें हमने डाली, जिसमें एकेडमिक एक्सीलेंस थी, पर्सनैलिटी बिल्डअप है, और इसके बाद फिजिकल फिटनेस है, एंड इनकल्केशन ऑफ नेशनल एंड रिलीजियस स्पिरिट, और साथ साथ हम नेशनल लेवल की जो बात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा हाउ वी डू इट। इसके लिए जो जो पहली चीज़ जो थी ना, इट वाज कि यू हैव टू क्रिएट एन टीम, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कोई भी काम है ना, एज ए लीडर, एज ए मेंटोर, एज ए प्रिंसिपल, यू कैन नॉट डू इट until unless you have very energetic team, driving force, and driving force is basically the team, right? और इसमें I sat together with my principal, you know, and we started selecting the teachers and purely on merit. यंग बच्चियां मैंने सेलेक्ट की और यंग स्टाफ मैंने सेलेक्ट किया। उसमें आई वुड से मेरे ख्याल है मेरे पास अभी जो फैकल्टी है मोस्टली लेस माय डायरेक्टर ऑफ स्टडी and one of the teachers, all are bachelor, but they have a lot of energy on that. क्योंकि देखिए teacher cannot be a teacher until unless they do not have the vision, the I would say the vision to deliver. They have the motto to deliver, the motto to contribute. और उसके साथ जब तक उनके अंदर अच्छी टीचिंग स्किल्स नहीं होगी ना, देखिए डिग्रीज तो सारे ले लेते हैं, जब तक आप उसको डिलीवरी नहीं है ना, यू आर अनएबल टू मोटिवेट, तो यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट दैट। तो वो हमने वो बच्चियों को सिलेक्ट किया, दैट मेड मी अ गुड टीम।
और फिर हमने इसमें मल्टीटास्किंग शुरू कर दी, राइट। तो जो काम मेरा ये था कि स्मार्ट वर्क, कम बच्चियां लें, अच्छी टीचर्स लें, और दे शुड बी एबल टू डिलीवर। और फिर उनको ये एक मैंने प्री रेक्विजिट रखा है जी, आपने यू हैव टू बी अवेलेबल टू मी फॉर 24/7। एंड दे सेड ओके जी। जिन बच्चों ने मुझे कहा ना कि दे आर अवेलेबल 24/7, अलहमदा दे आर पार्ट ऑफ माई फैकल्टी, और दिस हाउ आई मेड टीम। सो बीइंग द, यू कैन से द ओल्ड energetic leader, I made a young team, and that team is grooming the young leaders of tomorrow. So how we are working on that. उसके साथ साथ हमने ये किया कि वी स्टार्टेड मेक अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द लर्निंग एंड टीचिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब जब तक मैंने कहा ना कि घर में एक एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं देते ना, बच्चा ग्रूम नहीं होता प्रॉपर तरीके से। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है ना, बच्चे के अंदर विजन नहीं आएगी। इसी तरीके से कॉलेज के अंदर वी ट्राई टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द लर्निंग एंड टीचिंग। और इस एज में, जब हमारी जो एज है, हम 12 से 14 साल की बच्ची को लेते हैं, और दैट इज अ वेरी सेंसिटिव एज। बच्चियाँ, पर्टिकुलरली बच्चियों के लिए, द पीपल आर वेरी सेंसिटिव। यू हैव टू डेवलप द कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है पेरेंट्स को कि जी बच्ची आपकी सेफ है, अच्छे माहौल में है, अच्छे एनवायरनमेंट में है। और फिर जब आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, अल्टीमेटली वही बच्चियाँ और वही पेरेंट्स आपके एम्बेसडर बन जाते हैं। दिस व्हाट इज हैपनिंग विद मी। सो आई डोंट हैव टू लुक फॉर द प्लेटफॉर्म फॉर द डिलीवरी। वही बच्चियाँ मेरी एम्बेसडर हैं, वही फैमिलीज, वही पेरेंट्स मेरे एम्बेसडर हैं, और उनकी वजह से बाकी बच्चे आने शुरू हो गए। अभी मेरे पास इतना ज़्यादा रश है, आई एम अनेबल टू टेक बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड स्पेस। So I tried to create a conducive environment as per the 21st century skills। जो मैं इसकी जो बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे टॉपिक का एक पोर्शन भी है, आई वुड टेक सो उसमें मैंने क्या किया कि क्लास को एक टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज क्लासरूम बना दिया विद अ चेक एंड बैलेंस। सो वी डू नॉट गिव द गैजेट्स टू द कैडेट्स, राइट, कि मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, कमरे के अंदर लैपटॉप मोबाइल अलाउड नहीं है, बट क्लासरूम में वी हैव ऑल द इक्विपमेंट अवेलेबल एंड द सुपीरियर ऑफ माई टीचिंग फैकल्टी। टीचर्स को आई डोंट कॉल देम टीचर, आई कॉल देम डीएस, डायरेक्टिंग स्टाफ। राइट फ्रॉम द स्टार्ट बच्चों के अंदर वो एक विजन आ जाए कि विजन ऑफ द क्रिएटिविटी, कि दे आर नॉट बीइंग टॉट, दे आर बीइंग डायरेक्टेड, और उन्हें चीज़ों को क्रिएट करना है। अभी हमने ये किया, क्लास को एक बड़ा ज़बरदस्त कर दिया। वी हैव द वाइट बोर्ड, वी हैव द स्मार्ट बोर्ड, वी हैव द नेट फैसिलिटीज, वीपीएस। क्लास को हम पूरे का पूरा डेकोरेट कर दिया। अभी बच्चे बैठते हैं, अब दे डोंट हैव टू टेक द बुक्स इन द रूम। मेरे बच्चे इधर ही बैठते हैं, इधर ही पढ़ते हैं, इधर लर्न करते हैं, इधर असाइनमेंट करते हैं। वो मैं बताता हूँ कई और हमारा क्या। सो दैट इज द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आई हैव क्रिएटेड। फिर उसके अलावा मेरी क्लासरूम में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। So you go on my side and you will see it. It's not mandatory for the teacher to stand and deliver. No, she is very flexible, you know. सर्कल में बैठ जाए, सेमी सर्कल में बैठ जाए, शी कैन सेट, शी कैन स्टैंड, यू नो, शी कैन चैट, शी कैन डिलीवर। एंड उसके साथ साथ मैंने एक ऑडियो सिस्टम भी क्लास में रखा। सो दैट वो बच्ची जब टीचर माइक में बात करती है ना, वो बच्ची को ऐसा महसूस होता है कि टीचर इज स्टैंडिंग राइट ऑन द हेड। वो ये नहीं होता बैक बेंचर्स को आवाज ही नहीं आ रही तो दे फील लाइक स्लीपिंग, यू नो। सो दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट। फिर इसके साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्रिएटेड, आई वुड क्लेम दैट दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट लाइब्रेरी आई एम मेंटेनिंग इन मरदान एट द मोमेंट, beside the university level. Definitely we cannot match your university, but school level पे मैं कहता हूँ कि मेरी this is one of the best university, and the donor is one of my colleague। उसने कहा यार जावेद कैडेट कॉलेज बना रहे, मैं कहा जी ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे यार I'll donate, and one of my colleague, he donated this library, he sent a truck of books from the Karachi, और हमने इधर establish कर दिया। अब तो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट लाइब्रेरी। डोनर्स भी आपको मिल जाते हैं जो कंट्रीब्यूट करने वाले। सो वी इनकरेज द कैडेट्स टू कैरी टू रिसर्च। रिसर्च में हम नेट फैसिलिटीज देते हैं, और आई वुड रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। जो मेरी बच्चियाँ बिसाइड करिकुलम जो ज़्यादा बुक्स देते हैं, वी हैव द अवार्ड्स फॉर देम जब एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एंड वुड यू बिलीव कि जो मेरा पहला अवार्ड दिया मेरी पहली बच्ची ने, बिसाइड स्टडिंग द बुक्स, 38 बुक्स उसने सेशन में 6 महीने में पढ़ी थी। सच ही वो डिक्लेयर द बेस्ट, और उसको हमने अवार्ड दिया। नो वी हैव, अभी बच्चियों में एक इंसेंटिव आ गया। सो दिस इज बेसिकली ऑनर एंड रिवॉर्ड्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू सेट स्मॉल लिटिल ऑब्जेक्टिव्स
मैंने कहा ना कि जब आप एम्स और गोल हाई करते हैं, उसके साथ आप छोटे ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, जब विच आर अटेनेबल, वो अटेनेबल हो जाते हैं ना, तो उसमें अटेनेबल ऑब्जेक्टिव में बाकी बच्चे भी शुरू कर देते हैं. सो दिस इज नाउ वी हैव इन द करिकुलम वी हैव एडेड अ लाइब्रेरी पीरियड. ऑल लोग बाकी लोग भी करते हैं, बट वी हैव अ डेडिकेटेड लाइब्रेरी पीरियड विच इज अंडर द सुपरविजन ऑफ माय टीचिंग फैकल्टी. दे सिट, बैठते हैं, बच्चियां रीड करती हैं, वी गिव देम अ बुक्स, और उसके बाद उसको आगे लेके चलते हैं. तो वी हैव वेल kept साइंस लैब्स और बिसाइड ये वो इसका रिजल्ट जो मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट क्या हुआ, ये जब हमने काम शुरू किया. अभी अच्छा, इससे पहले मैं रिजल्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज द रूटीन, हाउ वी विद लिव, ऐसे आई एम ग्रूमिंग द लीडर, हाउ वी आर डूइंग इट. ये हमारा टाइम जो ना, इट्स वेरी क्लोज टू द नेचर. मेरा वो नहीं है, नॉर्मल स्कूल का टाइम नहीं है. मेरी बच्चियां, आई डोंट हैव डे स्कॉलर्स, सारे के सारे मेरे कैडेट्स, माय टीचिंग फैकल्टी, they live within the college. So we work 24/7. मेरी बच्चियां सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठती हैं. अब आप से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठती हैं तहज्जुद के टाइम पे, नमाज पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, एंड बेल उनकी हो जाती है. तो वार्डन इज रिस्पॉन्सिबल टू द वार्डन, द पीटी फीमेल टीचर, शी इज द वन, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वेक देम अप. उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, एंड दे गेट आउट फॉर फिजिकल ट्रेनिंग पीरियड इन द मॉर्निंग. वी हैव द फिजिकल ट्रेनिंग पीरियड, वी हैव द ड्रिल, मेरा स्टाफ आ जाता है, आई एम ऑल्सो आउट विद देम. सो माई टीचिंग फैकल्टी उनके लिए मैंडेटरी नहीं है बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर द लेसन्स, बट माई सेल्फ, my PTA teachers, they are with the cadets. हम उठते हैं, उनके साथ फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं. तो दैट इज बेसिकली जो आपने कहा फिटनेस ट्रेनर. तो जब आप यंग बच्चों के साथ आप कर रहे होते हैं ना, तो यू फील यू मोर इंथ्यूजियास्टिक एंड यू वर्क दैट. उसके बाद होता ये है कि जब हमारा 45 मिनट का सुबह पीरियड होता है, पीरियड करने के बाद दे गो बैक, चेंज इनटू यूनिफॉर्म, राइट. They have the refreshing facilities. We are working in the limited environment because this is a temporary campus where we are working. कॉलेज हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह 2 साल में हमारा मुकम्मल हो जाएगा. देन विल बी शिफ्टिंग ओवर देयर, जिसमें हमारी फिर बड़ा ब्राइड अप हो जाएगा, जिसमें हम आगे बच्चों को ज़्यादा इंटेक ले सकें. वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी. उसके बाद बच्चे नाश्ता वाश्ता करते हैं. सो ग्रूमिंग प्रोसेस कंटिन्यू. द टीचर्स गो विद देम, सिट विद देम, टेक द ब्रेकफास्ट. उनको वहाँ पे टीचिंग होती है बकायदा कि जी कैसा फॉक पकड़ना है, प्लेट को कैसे रखना है, हाउ दे हैव टू सेट लाइक द PMA. सो बेसिकली आई वुड से ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशन जो ना, इस वक्त आर्मी में PMA इज द वन. बाकी सीनियर ग्रूमिंग के लिए स्टाफ कॉलेज एंड यू, I take that way. CSS Academy, I've never been to that, but I learned it. They also grew that way. So we started ये जो बच्चों के grooming के लिए, I thought that this is the one how we can grow. I learned out of that and I'm continuing this way. नाश्ते में बच्चियां बैठती हैं, we sit together, उसके बाद मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें भी हमारी क्रिएटिविटी होती है. वी हैव द डिफरेंट अपॉइंटमेंट, सेट ऑफ अपॉइंटमेंट. ये बच्चों को एक थीम दिया जाता है डेली बेसिस के ऊपर. दे कैरी आउट रिसर्च और प्रिपेयर करते हैं, and we give them a platform. We attend the assembly, my complete faculty, जिसमें बच्चे तलावत करती हैं, नात पढ़ती हैं, right, and they sing also, and they perform also, they deliver also. एक थीम में चलते हैं. थीम would be one leadership. They talk about the leadership. कुरान में हिस्ट्री के और प्रिवेलिंग उनकी बात करते हैं. ठीक है, ये हमने. उसके बाद then we start with the classes. We have the classes starting from 8:30 till 1:30. That's the time. उसमें वी डोंट वेस्ट टाइम. मेरी क्लास मिस नहीं होती है. ऑल टीचर्स दे हैव टू बी देयर. और मैं कहता हूँ जैसे मर्जी पढ़ाएं, खड़े होकर, लेट के, मैंने कहा बैठ के पढ़ाएं, जैसे मर्जी. दे कैन टेक देम आउट इन द फील्ड, बट दे डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम. और बच्चे दे फील फ्री. आई एम विद देम वेन एवर देयर इज अ टाइम, आई सिट विद देम. मैं डेली, मेरा ऑलमोस्ट हर क्लास में उनके साथ लेक्चर होता है. एंड आफ्टर दैट वी गिव अ टाइम फॉर द रेस्ट. लंच होता है, लंच अगेन द टीचिंग फैकल्टीज विद देम. Normally I also go sit with them. That is a learning process continues. उनको हम नैप के लिए टाइम देते हैं, 1.5 घंटा रेस्ट के लिए टाइम होता है. एंड आफ्टर दैट दे अगेन पुट ऑन द ट्रैक सूट, कम आउट. उसमें दे गो टू द क्लासेस अगेन. एक प्रेप पीरियड होती है हमारी, प्रेप स्टडी, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, बट अगेन अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द टीचिंग फैकल्टी. एक टीचर होती है जो ड्यूटी पे होती है, उनके साथ उनको गाइडलाइन में वो बच्चियाँ तैयार करती हैं. 1 घंटे के लिए उनकी प्रेप पीरियड होता है. प्रेप करने के बाद they offer their prayers over there in the classroom. जोहर की नमाज, असर की नमाज पढ़ती हैं. They go out
for the games. We have the different games. We have created environment in the college. We have basketball, handball, volleyball, tug of war, right? Football, even to an extent, badminton, cricket, and taekwondo. Taekwondo is mandatory for my college. तो मैंने कहा ना फिजिकल स्टैंडर्ड हमने एक ले डाउन किए उसके लिए उसके मैं अटेनेबल आपको बताऊंगा वो ऑब्जेक्टिव इज सेट एंड वी अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो तो वो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए वी कंडक्ट द गेम्स और गेम्स के बाद देन दे गो आफ्टर दैट मगरिब प्रेयर होती है मगरिब प्रेयर के बाद दे चेंज इनटू ड्रेस सो चेंजिंग ऑफ ड्रेस इज अगेन द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सो लीडरशिप ट्रेट मल्टीपल देखिए सुबह उठे नमाज पढ़ी ड्रेस चेंज किया ट्रैक सूट देन यूनिफॉर्म के बाद अगेन दे गो बैक चेंज इनटू नॉर्मल ड्रेस हैव अ रेस्ट देन चेंज योर ट्रैक सूट कम आउट डूइंग द गेम्स द प्रेप पीरियड फिर उसके बाद कमरे में जाते हैं देन अगेन नमाज पढ़ते हैं दे चेंज इनटू शलवार कमीज राइट वी हैव अ वॉकिंग आउट ड्रेस ले डाउन ड्रेस ठीक है वी ऑब्जर्व द पर्दा स्कार्फ बच्चियाँ पहनती हैं प्रॉपर तरीके से ठीक है ब्लेजर पहनती हैं विंटर्स के लिए वी हैव दैट इज अवेलेबल ऑन द साइट नेट पे हमारे हैं एंड देन वी हैव 1 घंटे की हमारी कुरान क्लास होती है वी ऑल्सो सेट टू गैदर इन ऑडिटोरियम कुरान क्लास के बाद बच्चियाँ डिनर करती हैं डिनर करने के बाद दे गो टू फॉर द प्रेप टू अगेन टू द क्लासेस वो 2 घंटे की हमारी प्रेप होती है दे कैरी आउट अ स्टडी ओवर देयर वहाँ पे अपनी काम करती हैं टीचर्स उनको गाइड करती हैं जो डेफिशिएंसी क्लासरूम में हो गई होती है वो पूरी करती हैं एंड अल्टीमेटली दे फॉल बैक टू द रूम बाय 10:30 और उनके पास दे आर गिवन अ टाइम अबाउट 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर से 11 बजे तक वो अपनी ईशा नमाज पढ़ के चेंज ओवर एंड दे ऑल गो टू स्लीप दैट इज अ लाइट ऑफ टाइम सो दिस हाउ बेसिकली हमने एक स्केल को नेचर के करीब रखा है और इसी में दे डोंट नो इट व्हाट द ट्रीटमेंट बीइंग डन विद देम बच्चों को एहसास नहीं है जो उनके साथ उनका ट्रीटमेंट का उस वक्त पता चलता है वंस दे गो बैक एट होम एंड दे फाइंड द पेरेंट दे ऑब्जर्व अ गुड चेंज इन देम कि यार ये हमारी बच्ची तो उठती नहीं थी सो ही रहती थी या नमाज पढ़ के सो जाती थी अभी तो दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग राइट एंड दे गो आउट फॉर द स्ट्रेचिंग छुट्टियाँ जैसे आजकल बच्चे दे गिव मी ऑफ एंड ऑन फीडबैक दैट वी हैव द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो क्लास के बाद मेरा बच्चों के साथ बातचीत होती रहती है कि बेटा पढ़ने के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है आई डोंट वांट टू सी वेस्ट माय कैडेट राइट तो बच्चियाँ मेरे साथ करती हैं शेयर करती हैं सो दिस इज हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग दैट वे उसका रिजल्ट क्या हुआ मैं अभी आपको रिजल्ट बताता हूँ रिजल्ट क्या कैडेट कॉलेज का रिजल्ट ये हुआ कि मेरी पहली क्लास 9th अपीयर हुई बोर्ड के एग्जाम में तो ऑल ओवर पाकिस्तान ओपन मेरिट पर बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं और हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट एंट्री का इतना मैच्योर नहीं था बिकॉज आई नेवर हैड अ फैकल्टी हमने एक सिस्टम के तहत एक बना के उसमें बच्चों को इंडक्ट किया था माई 66 कैडेट अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम वुड यू बिलीव 65 A+ and 1 is A that is a record in KBK my first class appearing in the board and 49 cadets 90% plus I never told them कि जी आपने मैंने कभी भी उनको वो अनअटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए मैंने कहा आपने पढ़ना है बेटे पढ़ना किस लिए है जस्ट टू अप्लाई ऑन ग्राउंड लर्न सीक नॉलेज नंबरों के लिए नहीं पढ़ना वो अल्टीमेटली और मेरा जो पहला जो बच्चों को विजन में देता हूँ उसमें दैट इज ऑफ द कैरेक्टर तो लीडरशिप में जो कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें मेरी एम्फोसिस होती हैं पहला उसमें है कैडेट डू नॉट चीट स्टील टेरराइज this I learned in the army it is the VN of the PMA right the cadet do not cheat steal terrorize और यही VN मैंने अपनी बच्चियों को मैंने कहा बच्चे चीटिंग टॉलरेट नहीं हो सकती तो यू विल गो होम स्ट्रेट वे आई डोंट रिक्वायर अ चीट पीपल इन माय कैडेट कॉलेज और बच्चियों ने डिलीवर किया यू कैन वेल इमेजिन मेरे पास जो इन्विजिलेटरी स्टाफ आया बोर्ड के एग्जाम के लिए मैंने कहा जी आप बच्चियों को नहीं निकालेंगे मैं बच्चों को निकालूंगा इफ वन ऑफ माय कैडेट चीट इन द एग्जाम प्लीज टेल मी will not tolerate. You may tolerate, but we will not tolerate. और अलहमदुलिल्लाह you can see the result. तो ये तो एकेडमिक एक्सीलेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी जो बात मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ वी सेट द फिजिकल स्टैंडर्ड और एंड हाउ वी अटेन द स्मॉल लिटिल ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल स्टैंडर्ड ये था कि जी यू हैव टू एक्सेल इसके लिए हमने मल्टी प्रॉन्ग स्टडी अडॉप्ट की उसके लिए हमने क्या कि जी अच्छा एक गेम को पकड़ लें बच्चों को डाल दें गेम्स के अंदर
पहले मेरे पास क्योंकि लिमिटेड ग्राउंड अवेलेबल थे, मैंने कहा जी ओके ठीक है, हैंडबॉल की टीम एक बनानी शुरू कर दी। पहले साल वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द टूर्नामेंट। सो दिस इज, देखिए एक स्पिरिट जो मैंने कहा ना, नेशनल स्पिरिट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कम विद द टीम स्पिरिट, with the home spirit, with the community spirit, right? And ultimately, it converts into the national spirit. So it is one of the major character trait of a leader. So how we are doing it? Academic excellence में मैंने बात कर ली, हम उनको एक conducive environment देते हैं so that they read to deliver. फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ कि बैलेंस इज क्रिएटेड विद द फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड की हमने कहा फिजिकल फिटनेस, उसके साथ साथ हमने कहा जी बच्चे आपने गेम्स में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उसमें बच्चों की हमने टीम बनानी शुरू कर दी। पहली दफ़ा मैंने 2017 में आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द गेम। 2018 में यहाँ पे मरदान बोर्ड के एग्जाम हुए, 32 स्कूल एंड कॉलेजेस दे टुक पार्ट एंड आई पुट माई टीम इनटू इट। My handball team, would you believe, it was declared the best and they became champion out of 32 schools and colleges. My cadets are 12 to 14 years of age. They became champion. So 17, 18 के भी they're champion. इंटर बोर्ड का हुआ पाकिस्तान लेवल पे, वही बच्चियां मेरे मरदान बोर्ड को रिप्रेजेंट किया। वी लॉस्ट बाय 1 goal फ्रॉम पिंडी बोर्ड एंड वी वर द रनर्स अप इन पाकिस्तान। वही बच्चियां, कैन यू बिलीव। उसके साथ साथ हमने दूसरी गेम्स में वी कुड नॉट एक्सेल, बट एथलेटिक्स में वी वर नंबर 3, फुटबॉल में वी वर नंबर 2, बट वी सेट एन ऑब्जेक्टिव। बास्केटबॉल में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने कहा देखते हैं वो क्या हुआ। अगले साल KPK गवर्नमेंट दे सेट फॉर द नेशनल गेम्स। उन्होंने कहा जी वी विल हैव नेशनल गेम्स इन KPK। 33 नेशनल गेम्स KPK ने कंडक्ट की। आई पुट माई टीम इनटू दिस। वो अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरी हैंडबॉल टीम, they were selected on merit to represent the KPK in national level. वही बच्चियां all under 15 they represented KPK। और पहला मैच किसके साथ था? आर्मी के साथ। कैन यू बिलीव दैट। तो आर्मी इज अ प्रोफेशनल फोर्स जहाँ बच्चियां ट्रेन होती हैं। एंड मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने बच्चों को मैंने कहा बेटे विनिंग लूजिंग डज नॉट मैटर, हाउ यू डिलीवर, हाउ यू परफॉर्म। They played first match with the army, second with, can you believe, with the WAPTA, third with HEC. Although they lost, but it was the first time in the history a girls cadet college team standing in front of the army and also standing with the honor. It was well appreciated by all. और उन्होंने ये नहीं किया, गोल भी स्कोर किए उनके अगेंस्ट, ठीक है, और पूरे का पूरा मैच खेला। उन्होंने कहा जी जबरदस्त, वी अप्रिशिएट दैट। आर्मी के खिलाफ तो कभी कोई टीम खड़ी नहीं होती है, इन बिटवीन दे लीव इट। और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड नो माय टीम। वो कैडेट आप देखें कि जब आप एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं ना उनको, आई अप्रिशिएट माय स्टाफ आल्सो एंड यू ट्राई टू ग्रूम द लीडर्स। वही बच्चे एट दिस लेवल से एट द एज ऑफ 14-15 years नाउ दे हैव द नेशनल कलर। बच्चियां नेशनल कलर हैं बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड एट नेशनल लेवल। अभी वही टीम जब डाली 2019-20 के लिए, जब मैचेस के लिए, एंड देयर वाज नो वन टू मैच विद अस। हैंडबॉल में वी आर नंबर 1, बास्केटबॉल में वी आर नंबर 1, एथलेटिक्स में वी आर अगेन नंबर 1, एंड फुटबॉल में अगेन वी आर नंबर 1। सुनो वही बच्चियां, once you give them a proper coaching, proper technique and the leadership, and they learn it out of that spirit, right? They have to fight, they have to excel, और वो बच्चियां भी एक्सेल करना शुरू होगी। उसके साथ साथ मैंने कहा ना कि मेरी बच्चियों के लिए ताइक्वांडो इज मैंडेटरी। ताइक्वांडो में मेरी बच्चियों ने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया। although they could not win the prizes, but their positions was 4th and 5th at national level. फिर अंडर 21 गेम्स हुई। अंडर 21 गेम्स अगेन दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन KPK लेवल, जो अभी पिछले दिनों में ख़त्म हुई है। आप यू मस्ट हैव हर्ड दैट। मेरी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया, वी वन 16 मेडल्स। कैन यू बिलीव दैट। बच्चियां पहली दफ़ा उस लेवल पे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रही हैं। अगेन माय हैंडबॉल टीम इस अंडर 21 की चैंपियन है KPK की। और उसके बाद मैं ताइक्वांडो में मेरी 2 बच्चों ने सिल्वर किया,
बाकी 14 ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। The clips are available on my YouTube channels, right? And जो ताइक्वांडो की बच्चियां मेरी अभी, और ताइक्वांडो और जूडो बोथ, जब इंटर क्लब मर्दान मैंने टूर्नामेंट में डाल दिया, there was no one to match with them. All gold medals, silver medal, and bronze medal that came to my cadet college, all medals, and on there's no one to match with. So this is how we are training and grooming the leaders. उसके पर्सनैलिटी बिल्डअप के लिए जो मैं आपको बात जो ये आपका प्रोग्राम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, तो आई हैव सो अच्छा। मेनी थिंग्स टू मैं गिव थोड़ा-सा रन यहाँ पे अपने व्यूअर्स को जो है वो ऐड करता जाऊँ कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ पे गौर करें। हमारे पास इस टाइम जो है ना, इन द व्यूअर्स वी हैव मेनी गर्ल्स हू आर वाचिंग अस, बॉयज़ आर आल्सो देयर। आप देखिए कि एक कॉलेज स्टार्ट किया जाता है और फ्रॉम ज़ीरो अ पर्सन इज़ बीइंग इंडक्टेड, ब्रिगेडियर साहब को इंडक्ट किया जाता है और within the time, a very short time of period, starting from April 2017, and then it is just April 2020 crossed. आप 3 years. पोजीशन देखें, 3 इयर्स जो है हार्डली इसको हुए हैं। इन 3 सालों में जो सफ़र है और जो कामयाबियां हैं वो आप सुनते जा रहे हैं। मेरा तो यकीन जाने दिल कर रहा है कि ब्रिगेडियर साहब बताते जाएं और हम लोग सुनते रहें। यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, वो ये है हमारे मैं बोलूँगा एजुकेशनिस्ट जो हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उनके लिए भी कि देखिए अगर एक इदारे को इस तरीके से एक अच्छी मैनेजमेंट इस पोज़ीशन पे शॉर्ट टाइम में लेके जा सकती है, जैसे आपने की मर्दान और ये एरियाज़ काफ़ी अफ़ेक्टेड थे हमारे पास जो है, जो एक टेररिज़्म की वो वबा चल रही थी, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारी अफ़वाज को भी कामयाब किया, हमारी कौम को भी कामयाब किया। ऐसे हालात के अंदर वहाँ पे एक चीज़ को और फिर एक माइंडसेट है हम लोगों का, कंज़र्वेटिव माइंडसेट, ट्रेडिशनल माइंडसेट है हम लोगों का। वहाँ पे एक ऐसा गुलदस्ता बना देना, जिसके अंदर जो है वो इस तरह की समझें कामयाबियाँ, इस तरह की ग्रूमिंग, तो पाकिस्तान एक बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। पाकिस्तान एक बड़ा समझें कि एक ऐसा मुल्क है जिसमें टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन आज आके जो हमारे पास कमज़ोरियाँ हैं, उनमें से बड़ा मसला हमारी मैनेजमेंट का है। अगर हमारी मैनेजमेंट जो है, वो उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाए, उसके अंदर इस तरह का विज़न हो, इस तरह की एनर्जी हो, एंथुसियाज़्म हो, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क बन सकता है। हम एक Yes, right. ऐसी हम एक ऐसी लीडरशिप दे सकते हैं जो कि आप देखिए कि एक तरफ जो है वो हमारे मेल्स जो हैं उनकी एजुकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है, ग्रूमिंग हो सकती है। और जैसे कि ब्रिटिश साहब ने मज़े की बात की है कि इदारा सिर्फ और सिर्फ जो है फ्यूचर के फौजी अफसर तैयार नहीं कर रहा है, वो आपको एक ओपन जो है ना वो ग्राउंड्स दे रहा है कि आप जो भी बनना चाहते हैं अपनी अहलियत के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक आप वो करें। लेकिन उसके साथ-साथ ज़रूरी है जो चीज़ें हमें लर्निंग के लिए मिल रही हैं, उसके अंदर पहले नंबर पे आई वुड कॉल इट डिसिप्लिन। जब ज़िंदगी में डिसिप्लिन है, तो आप समझें कि आप ज़िंदगी के अंदर जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास अभी Yes. जब मैं यूथ के मुख्तलिफ जो है वो फीडबैक वगैरह लेता रहता हूँ, तो मुझे अफ़सोस भी होता है कि टाइम इतना है लेकिन उसकी मैनेजमेंट नहीं है। आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो एक पोस्ट शेयर की, वो पोस्ट थी नेवी के अंदर जो है इंडक्शन की। अब वो थोड़ी-सी क्लियर नहीं थी तो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं दे आर कमिंग बैक टू मी, सर अच्छे वाला फ़ोटो लेके दोबारा अपलोड करें। तो मैंने बोला भाई उसके अंदर वेबसाइट दी हुई है, काइंडली थोड़ी-सी हिम्मत आप भी कर लें, एफर्ट कर लें, ठीक है। एफर्ट ले ठीक लें है। थोड़ी-सी। और टाइम मैनेजमेंट हमारे पास टाइम है लेकिन उसकी मैनेजमेंट नहीं है। अगर सोए हैं तो 12 घंटे सोए हुए हैं और अगर कुछ कर रहे हैं तो कई घंटे वो चीज़ कर रहे हैं। अगर हम जो है ना वो खाने के लिए कहीं निकल जाते हैं तो कई घंटे वहाँ ज़ाया कर देते हैं। तो वी हैव अनदर लर्निंग फ्रॉम ब्रिगेडियर साहब टुडेज़ शेयरिंग टाइम मैनेजमेंट। How do we need to work hard on our time management? The third learning is coming right now, that is about setting the goals. ज़िंदगी में जब गोल सेट नहीं होंगे तो फिर ज़िंदगी चलती जाएगी। ज़िंदगी में आपको गोल सेट करने पड़ेंगे और गोल जैसे उस बच्ची का ज़िक्र किया, शी वांटेड टू बिकम अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, even I would say that you can have the higher goal than that.
आप अपने Yes. गोल्स को सेट करें, फिर उसके लिए आप मेहनत शुरू करें। और जैसे ब्रिगेड साहब ने जब बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीफ बन ही जाएँ, तो आप हो सकता है यू विल डेफिनिटली फॉल समवेयर इन दैट जनरल क्लब। अल्लाह ताला आपको लाज़िम बात है, आपके लिए जो बेहतर होगा वो ज़रूर करेगा, लेकिन आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उनकी ज़रूरत है। आपका वो जो गोल सेट है, जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आपका कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि गोल सेट इज़ एक्चुअली योर विज़न। आपको विज़न क्लियर होना चाहिए कि मेरी डेस्टिनेशन ये है, अब उस डेस्टिनेशन के लिए मुझे क्या करना है, दैट इज़ योर मिशन। और फिर जैसे-जैसे आगे ब्रिगेड साहब से हम लोग सुनते जाएँगे, आप देखें कि इतने कम अरसे में बहुत सारे बच्चे-बच्चियाँ जो हैं, दे आस्क मी एज़ वेल द क्वेश्चन, "ओ जी, हमारे पास जो है ना, हम तो बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े कैपेबल हैं, हमने अभी तक कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की है।" So I would just give you the example here कि देखिए achievement is not something limited to any one class or one person or few people. Achievement is actually conditional to your efforts. आप समझ लें कि अगर आप अचीवमेंट नहीं हासिल कर पा रहे, तो आपकी जो एफर्ट्स का लेवल है वो अभी उस लेवल का नहीं है कि आपको वो अचीवमेंट मिले। लेकिन आप जब उसके अंदर और थोड़ी सी एनर्जी डालते हैं, थोड़ी स्ट्रगल और करते हैं, तो फॉर श्योर द अचीवमेंट्स आर ओपन फॉर यू। आप देखिए कि टीम्स जो गर्ल्स कैट कॉलेज मर्दान ने डाली, उनके मुकाबले के लिए टीम ही नहीं थी। Yeah, हाउ Alhamdulillah. दिस इज समथिंग अमेजिंग। आप यानी आप दुनिया से आगे जा रहे हैं। आप ये नहीं है कि आपने सिर्फ उनसे मुकाबला करना है, आप तो उनसे आगे जा रहे हैं कि वो पीछे रह गए हैं, वो आपके मुकाबले के लिए टीम ही मौजूद नहीं है यहाँ पे। So these are the learning we are having, and further, Brigadier Saab is highlighting about the role of leadership कि किस तरीके से आप leadership inculcate कर सकते हैं। Sir, back to you again, please. Okay. बेसिकली देखिए वो जो आपने आई टेक अ लीड फ्रॉम यू एंड आई वाज कमिंग ऑन दैट पॉइंट। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़, पहली जो चीज़ मैंने लीडरशिप में बात की थी, दैट इज़ अ कैरेक्टर, राइट? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मैंने हम पहला वीएन जो बच्चों को दिया है, कैरेट डू नॉट चीट स्टील टेल लाइज। सेकेंड जो चीज़ उनकी होती है इखलाक, इखलाक, so dealing with the seniors, with the juniors, brothers, vertical, lateral, that is very important. वो ये कुरान पाक में भी अल्लाह ताला सबक देता है कि अच्छे अखलाक वाले जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीडर कैन नॉट बी द बॉसी वन, यू हैव टू लीड बाय द पर्सनल एग्जांपल्स। और जब तक आप एक टीम बनाने की स्पिरिट नहीं आएगी ना आपके अंदर, वो आप अच्छे लीडर बन ही नहीं सकते। दिस वाई वी आई ट्राई टू इनकलकेट इनटू माय कैडेट्स। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, जो प्राइम एस्पेक्ट, दैट इज अ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में दो कैटेगरीज है, वन इज अ फोर्स डिसिप्लिन, सेकेंड इज बाय मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। सो वी डू इट। ये मैंने अपने प्रोसेस में हमने किया हुआ। द प्रोसेस में बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द लीडरशिप ट्रेनिंग, हाउ वी डू इट। एक तो जो हमारा फोर्स डिसिप्लिन है, उसमें वी हैव सर्टेन वीएन, एंड वीएन इज थ्रू द डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स। वी हैव द डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स, वी गिव अपॉइंटमेंट टू द कैडेट्स, और cadets through the appointment they try to force the discipline. And secondly, we inculcate this VN कि बेटा you have to put on your dress, you have to be on time, right, and you have to be physically fit. That is basically self discipline. जब बच्चों के अंदर ये आ जाता है कि नमाज पढ़ना, टाइम पे जाना, कुरान पाक पढ़ना, खाना खाना, सो दैट इज पार्ट ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये हमने, दिस इज हॉल मार्क ऑफ द कैरेक्टर लाइन। एंड उसके लिए हमने फिर इंसेंटिव रखे हुए हैं। इंसेंटिव क्या? इंसेंटिव इज इन द शेप ऑफ डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स, ऑनर्स एंड रिवॉर्ड्स, राइट? तो कॉलेज के अंदर दिस इज अगेन अचीवेबल ऑब्जेक्टिव विच हैज बीन सेट फॉर द डिफरेंट कैडेट्स, कि जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा शो करेंगे, राइट, गेम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, दे विल बी गिवन डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स, एंड सेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज चेंज आफ्टर 6 months। सो उसमें प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में वी आर ग्रूमिंग द यंग लीडर्स ऑफ टुमारो। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक तो उनके अंदर वो टू मेक अ टीम दे आर लर्निंग हाउ दे हैव टू लीड, दे आर लर्निंग हाउ दे हैव टू परफॉर्म, दे गेट अ प्लेटफॉर्म, राइट? जो डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, दे गो परफॉर्म ऑन द स्टेज, राइट, दे स्टीयर देम जूनियर्स के साथ। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट होता है कैडेट कॉलेज में रैगिंग का, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रैगिंग इन माय कॉलेज।
हमने ये बच्चों को, ये जब मेरे बच्चे नए कैडेट ज्वाइन करते हैं, इंशाल्लाह वी विल हैव अ फोर्थ इंच ज्वाइनिंग वेरी सून आफ्टर द COVID-19, इंशाल्लाह एपिसोड इज ओवर. So they have already selected the 40 cadet. They will be joining with us, joining very soon. Then some of them may be listening to this program also. वो उनके लिए मैंने ये कहा कि they have to be the good elder sisters. They have to guide them कि बच्चे आपने कमरे को मैनेज कैसे करना है, आपने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, बुक्स को मैनेज कैसे करना है. They should not be bashing them, you know. अगर हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, आई कैन अश्योर यू एक भी बच्ची नहीं रहेगी हमारे पास. एंड यू नो, daughters are very lovely, you know, to the parents. They are very beloved one. और पेरेंट्स तो बच्चे के लिए टॉलरेट कर देते हैं, बच्चियों के लिए दे डोंट टॉलरेट इट. ठीक है. और हमने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहाँ पे दे आर बीइंग ग्रूम्ड एज अ एल्डर सिस्टर, as a young leader, as a young appointment holders, and also a young disciplined educator. ये हमने एक चीज़ें उनके अंदर डाल दी हैं जो अल्टीमेटली थ्रू द अपॉइंटमेंट वी डू इट. ये अपॉइंटमेंट इनको गाइड करती हैं, उनकी कोच करती हैं. इसके साथ साथ हमने हाउसेज बना दिए हैं जिसके अंदर वो नेशनल जो हाउस की स्पिरिट होती है ना, दे हैव द कंपटीशन विद इन द हाउस. वी डिक्लेयर द चैंपियन हाउस, यू नो. अल्टीमेटली वो करते क्या है, बच्चों को डिफरेंट टारगेट सेट करके दे, जैसे एकेडमिक्स के, फिजिकल स्टैंडर्ड के, स्पोर्ट्स के, ये डेक्लेमेशन कंपटीशन के, नाथ कंपटीशन के, राइट. जो ओवर द वीकेंड वी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट. क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तानी दे कैरी टू मेंटेनेंस. उसमें मेरी टीम होती है, तो डिपेंड्स अपॉन यू नो ऑन द टीचर्स. वो उसकी उनको एवेलुएट करती है, एवोल्यूशन करते हैं, दे ग्रेड देम. और फिर उसके बाद उनके लिए एक बड़े ऑनर की बात होती है, दे पुट ऑन द चैंपियन बैज ऑन देयर यूनिफॉर्म, राइट. And they are awarded a trophy as per their standard performance in the year. And they wait anxiously for the annual day. जिसमें पेरेंट्स बैठे होते हैं, they are given different awards. Right? तो ये this is the process how we do it. फिर उसके साथ साथ जो करेक्टर और पर्सनैलिटी बिल्डअप के लिए हम ये करते हैं, जो पर्सनैलिटी बिल्डअप मैंने कहा, जो वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप ट्रेड्स. ठीक है. उसमें द लीडर हैज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, शुड बी एबल टू कन्वे द व्यू पॉइंट. जब वो बात करे, जो उसका कंडक्ट हो, उसका इखलाक हो, देखने वाला हो, उसके लिए आई ट्राई टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म इज विद इन द कॉलेज, प्लेटफॉर्म इज विद द सोशल मीडिया. आई गिव देम ओपन प्लेटफॉर्म, नो, ऑफ एंड ऑन. अभी क्योंकि इट्स अ न्यू कॉलेज, द फर्स्ट इन द साउथ एशिया, फर्स्ट इन पाकिस्तान, मीडिया दे हैव लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर दिस. मेरे हर कैडेट के अंदर एक स्टोरी है. ये भी मजे की बात है कि हर कैडेट के अंदर एक स्टोरी है. So we have the cadet from the different part of the country, and now we have started taking, you know, overseas Pakistanis. उनकी भी हमें percentage है, we are taking that. I have a cadet from abroad. At the moment I have a cadet from Canada, 2 from Australia, 1 is from UAE. कतर से बची है हमारे पास. We have inducted, you know, another 4 which are joining the 4th entry. बात आगे चली जाएगी, but anyway. तो उसके लिए we provide them a platform. They deliver. मुख्तलिफ डेज हम सेलिब्रेट करते हैं. डिफेंस डेज होता है, फिर उसके बाद शोहदा को सेलिब्रेट, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी डिफेंस सेलिब्रेट द डिफेंस डे. उसमें बच्चियाँ डिलीवर करती हैं. फिर इनकी वी हैव अ फन, लिमिटेड फन विद दैट. ऑफ एंड ऑन बॉन फायर पार्टीज हम अरेंज करते हैं जिसमें बच्चियाँ ऑर्गेनाइज करती हैं, डिलीवर करती हैं. सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द लीडरशिप ट्रेनिंग. फिर उसके अलावा हम ये करते हैं कि नाउ व्हाट हैव डन इट, कि बच्चों को डिफरेंट असाइनमेंट दी जाती है. अभी वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट विच इज गिवन टू माय कैडेट्स एट द मोमेंट इज टू कंडक्ट एंड सुपरवाइज द एंट्री टेस्ट. इट इज वन ऑफ very very important event, and the hundreds of candidates all over the Pakistan and abroad, they come into the college. Many teachers, they steer their activities, they guide them, and the supervision, the reception, the conduct, the hospitality, it's done by my cadets. वो उनको गेट से रिसीव करती हैं. पेरेंट्स नॉर्मली दे आर नॉट अलाउड टू गेट इन द गेट. उनको लेके जाती हैं, एग्जाम हॉल में बिठाती हैं, उनको गाइड करती हैं. दे सुपरवाइज देयर एग्जाम्स, राइट. और दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, यू नो, ट्रेनिंग एज अ लीडर. टुमारो यू नो दे वुड बी परफॉर्मिंग दीज ड्यूटीज अल्टीमेटली. और वो दे फील प्राइड एंड ऑनर. उस दिन के लिए मेरी बच्चियाँ तैयार होती हैं. दे हैव अ स्पेशल यूनिफॉर्म, यू नो, प्रेसेस करके दे हैव टू लुक स्मार्ट ऑन दैट. मीडिया का एक्सपोजर होता है. आई टेल अ मीडिया वाला, भाई आप जाएं, जिस बच्चे को पकड़ें, दे हैव अ इंस्टीट्यूशन विद इन देमसेल्फ,
और बच्चियाँ हमारी वो डिलीवर करती हैं, दे टॉक टू देम ओपनली। और ये हमारा एक प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ द पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ऑफ एंड ऑन मैं सोशल मीडिया पे भी शेयर करता हूँ कि जो बच्ची पहले दिन मेरे पास आती है, वी डू पिक्चर, डिस्गाइज तरीके से हम उसकी पिक्चर जरूर लेते हैं। और सब्सिक्वेंटली जब बच्चियाँ दे स्पेंड अबाउट 6 months and 1 year, they see themselves how they were, how they are. So उनके अंदर खुद ब खुद एक सेंस ऑफ एलिवेशन आती है, सेंस ऑफ प्राइड आता है, विच इज अ बेसिक क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, राइट। तो ये हमारा एक प्रोसेस है। फिर मैं इसमें ये करता हूँ इनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, I give them a grand exposure. जैसे आप you are giving me exposure, on your channel. I give them exposure. Exposure कहते मेरी off and on, right from the start. ये मैंने पहले दिन किया था। पहले दिन जो बच्चियां, जो पहला बैच मेरा ज्वाइन किया था, I took them on a visit. It was education cum recreational visit. I took them. ये normally school colleges में it's very less it is done. Since I am RE person, I have a links. I take them to different institutions. This is the only unique institution of my level which has visited the National Defence University, Islamabad. I would say this is an honor for the Cadet College. मेरी बच्चियों ने NDU जहाँ पे normally army officers को besides those that are undergoing the training उनको access नहीं होती. I took them over there, and guys, I appreciate at that time the president of NDU. He invited us. I took them, और बच्चों को एक विजन मिल गया कि अच्छा यार ये भी एक लाइन है जहाँ पे दे कैन गो, दे कुड बी द गुड लीडर ऑल्सो। वो उनको पता चल गया कि यहाँ पे लीडर ट्रेन होते हैं, सीनियर लीडर ट्रेन होते हैं, पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग की जाती है। सो दे गॉट अ विजन कि जी हमें वहाँ तक एक्सेस मिल सकता है। ऑफन ऑन आई टेक देम टू PMA ऑन द पासिंग आउट परेड, सो दे सेट देयर रोल मॉडल्स। आई इनवाइट द डिग्निटरीज, और मेरे डिग्निटरीज बहुत कोई रिनाउंड पर्सनैलिटीज नहीं होती। मैं छोटे छोटे यंग को मेरे पास आता है, यंग ऑफिसर भी आता है, मेरे को या प्लीज कम एंड डिलीवर, टॉक टू माय कैडेट्स। सो उसके अंदर भी मैंने कहा ना कि एक लीडर्स के जो लीडरशिप बनाने के लिए उसके एक लीडिंग पर्सनैलिटी होनी जरूरी है, जिसको वो एक आइडियलाइज करे। और विद द टाइम इट हैज टू चेंज। अगर मैं कहूँ कि मेरी आइडियल पर्सनैलिटी कायद आज़म है, so at my level it's okay, I got a vision. यंग एज में इट्स ओके। क्या मैं कायदे उस लेवल पे बन सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट बी। मेरा ऑब्जेक्टिव स्मॉल लिटल होगा कि अच्छा एक बच्ची है जो कॉलेज स्कूल में कैसे परफॉर्म किया उसने, दैट हैज टू बी माई रोल मॉडल। उसके बाद सब्सिक्वेंटली वंस आई ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज और स्कूल, अच्छा मेरा रोल मॉडल वुड बी सम आर्मी ऑफिसर, सम CSS ऑफिसर, सम टीचर, राइट, सम लेक्चरर, some maybe like you, some anchor person, the one who's conducting a program, that could be the one. ये मैं आपको यहाँ पे आप शेयर करूँ, सबा रहमान is one of the renowned photojournalist of KPK. She is the only lady photojournalist. She came for the story, अरब न्यूज़ के लिए स्टोरी करी थी मेरे कैडेट कॉलेज में। मैंने कहा अच्छा अच्छी यंग बच्ची थी, उसको बैचलर से भी शी इज नॉट मैरिड, और आई मैंने कहा यार ठीक है स्टोरी करो, आई विल अलाउ यू, बट आई वुड लाइक दैट यू डिलीवर अ लेक्चर। उसने कहा सर मुझे टाइम दे दें। माँ जी टाइम इज़ योर्स, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ योर्स, प्लीज़ prepare yourself. And she came after 15 days and she conducted a lecture, motivational lecture to my cadet. मैंने कहा जी आपने खाली ये बताना है मैं क्या करती हूँ। And again that was a vision I gave to the cadets कि जी आपका रोल मॉडल एक फोटो जर्नलिस्ट भी हो सकता है, you could be anchor person also. It is not only कि जी टीवी पे जो कुछ एंकर पर्सन नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, should not be the role model, ये पॉजिटिव रोल मॉडल लड़कियां भी हो सकती हैं, those they are projecting you, they are projecting the Pakistan also, right? तो इस तरीके से मैं इनको एक रोल मॉडल, छोटे छोटे रोल मॉडल देता हूँ, जिसमें आई कॉल द गेस्ट स्पीकर। इवन मेरे गेस्ट स्पीकर पेरेंट्स भी होते हैं। आई टेल सम ऑफ द कोई गायनेकोलॉजिस्ट से मैं कहा जी आए मेरी बच्चियों से बात करें, क्लीननेस के ऊपर बात करें, शी बिकम द रोल मॉडल फॉर दैट डे फॉर सम टाइम ऑल्सो। सम टीचर दे कम, कोई रिटायर्ड ऑफिसर आ जाता है, कोई यंग ऑफिसर आ जाता है। आई इन्वाइटेड यंग ऑफिसर्स ऑफ PF, they were a colleague of my daughter, they came, मैंने कहा जी आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, they spent a complete day over there with them. उन्होंने मोटिवेशन लेक्चर डिलीवर किया, उनके साथ टाइम गुजारा, खाना खाया, एंड दे कंडक्टेड द क्लीन एंड ग्रीन एक्टिविटी कि उनके साथ लाइब्रेरी को मेंटेन करना, कमरों को मेंटेन करना, प्लांटेशन करना, सो दैट वाज एक्टिविटी डन विद देम।
So they became again a role model for them. And no, most of my kids say, inshallah sir, after FSC we want to apply. So my daughter is also a role model for them. They want to join Air Force because they know that after FSC, PF give them a platform where they could be serving in uniform. So that is how we are grooming the young leaders. उसके अलावा फिर हम ये करते हैं कि ये जो हमारा ग्रूमिंग प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस रुकता नहीं है. मैंने कहा ना, दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज कंटिन्यू. ये प्रोसेस उनके कमरे के अंदर भी होता है, उनके हॉस्टल के अंदर भी होता है, और उनके मेस के अंदर भी होता है. दैट इज अ कंप्लीट वन. कि मेस के अंदर कैसे, कि हाउ दे हैव टू मैंने कब आपको पहले बताया था, डाइनिंग में कैसे बैठना है, कैसे कंडक्ट करना है, नैपकिन को कैसे लेना है. they are guided, how they are being served. Also आयास हैं लेडी, उनको कैसे सर्व करती है, they are trained and how they are doing it. फिर उसके अलावा हॉस्टल में कैसे रहना है. सो दे हैव टू कीप दैट इखलाक का एक सिस्टम रखना है, कीपिंग इन माइंड कि जी हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर को डिस्टर्ब नहीं करना, बिकॉज दे आर स्टडिंग ऑल्सो, दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर रेस्टिंग ऑल्सो. जूनियर्स के साथ सीनियर्स ने कोऑपरेट करना है कि जी ये अच्छी बच्चियाँ हैं, वी हैव टू बिहेव विद देम, सर्व देम एज एल्डर सिस्टर्स. उनको बताना है कैसे रहना है, हाउ दे हैव टू मैनेज देमसेल्फ, बेड को कैसे साफ रखना है, ड्रेस को कैसे करना है, जूतों को कैसे ठीक करना है. सो दिस इज हाउ वी इनकलकेट द लीडरशिप ट्रेड्स. इसके साथ साथ हम ये करते हैं कि ऑफ एंड ऑन हम जॉइंट कोलैबोरेशन में एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज में मैंने 1122 को इनवाइट किया नंबर ऑफ टाइम, फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए. कैड्स मेरी दे कंडक्ट द फर्स्ट एड ट्रेनिंग विद देम. सो नो दे नो इट इन केस ऑफ इमरजेंसी. माशाल्लाह दे नो इट कि फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करनी है, जिसमें समटाइम अर्थक्वेक आ गया, कुछ और आ गया, कैसे प्रॉब्लम आ गया, इट जो हमारा एनवायरनमेंट है. तो विद इन दैट सोशल सर्कल, विद इन लिमिटेशन, दे कैन डू इट दैट वे. फिर इसके अलावा पुलिस के साथ ऑफ एंड ऑन ट्रेनिंग होती है, वहाँ दे काम, दे रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं. तो जिसमें माई कैडेट दे ऑल्सो हैव सम रोल टू प्ले, कि दे हैव टू लुक आफ्टर देमसेल्फ. जूनियर्स है सीनियर्स को, सीनियर है जूनियर्स को लुक आफ्टर करना है. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ग्रूमिंग ऑफ द लीडर्स, हाउ वी डू इट. ठीक है. और फिर इसके अलावा मैंने ये किया है कि ये जो करिकुलम है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये इनके लिए एक प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी प्रेजेंट करे. जिसमें मैंने कहा ना कि इसमें करिकुलम में कि देयर एक्टिविटीज ऑल आर प्रोसीडेड बाय डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंटरेक्शन विद द गेस्ट स्पीकर्स. जब हम ये चीज़ें करते हैं तो क्या होता है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, उसको पता चलता है अच्छा यार ये काम भी मैं कर सकती हूँ, ऐसे भी हो सकता है. ऑफन ऑन आई टेक देम टू द आर्मी इंस्टीट्यूशंस. दे हैव अ गुड इंटरेक्शन विद द सोल्जर्स, they have access to the different equipment, they go to the different messes, they know what the mess life is, जो normally एक citizen को available नहीं होती, and they go back, they narrate the story. उसके अंदर एक motivation आता है. तो leader has to be motivated also. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज वन ऑफ द, ये क्वालिटीज हम साथ लेके चले ना, कि हमने बात की, आपने जैसे कहा डिसिप्लिन की बात की, सेल्फ मोटिवेशन की, मैनेजरियल स्किल्स तो पूरा प्रोसेस है पूरी, जिसमें वी डिमॉन्स्ट्रेट आवरसेल्फ बाय कंडक्टिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. कि क्लासरूम को नीट एंड क्लीन कैसे रखना है, अपने आप को मैनेज कैसे करना. अभी यहाँ पे तो उनकी मामा नहीं है, यहाँ पे तो उनके बाबा नहीं है, वी आर द फादर्स, वी आर द मदर्स. सो वी ट्राई टू इनकलकेट दैट स्पिरिट. ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है. फिर ये जो ना, जो मैंने आपको बात की था, ये जो डिग्निटीज के साथ इंटरेक्शन, दिस इज वेरी पॉजिटिव. अभी देखिए आम बच्चों को एक्सेस नहीं होती. मैंने हसीना मोइन को बुलाया था, आई इन्वाइटेड, सो द फेमस ड्रामा राइटर्स, शी केम एंड स्टेड 2 days and 1 night विद देम. बच्चियों के साथ शी हैज अ विजन, और इतनी ज़बरदस्त खुश हुई, शी वेंट बैक और जाके उन्होंने आर्टिकल लिखा मेरे कैडेट कॉलेज के ऊपर, ख्वाबों की ताबीर. और ये हलाल मैगजीन जो वन ऑफ द लीडिंग मैगजीन ऑफ आर्मी, उसमें पब्लिश हुआ. और आप देखें उसमें 2018 जो फर्स्ट या सेकंड वाला है, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, उसमें पब्लिश हुआ. एंड ही रोड अबाउट द व्हाट हाउ शी सा द टैलेंट इन द कैडेट. और यहाँ पे बच्चियों में टैलेंट बहुत है यार, ये तो मैंने देखा है, particularly referring to the KPK, lot of talent, but due to the conservative environment, उनको flourish नहीं करने दिया गया. But alhamdulillah, now this platform is with them, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से बच्चियों के अंदर एक विजन आ रहा है,
उनको पता चल रहा है कि यार तो उनकी अपॉइंटमेंट पुलिस में भी हो सकती है। ऑफ एंड ऑन डीपीओज आते हैं, आई इनवाइट देम प्लीज कम एंड टॉक टू माय कैडेट्स, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, all they came, they visited. एयरफोर्स ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, दे ऑफन दे कम, उनके साथ इंट्रैक्शन होता है। ये ब्यूरोक्रेट्स, राइट, secretary, deputy secretary, additional secretary, whenever they come, I take them to my, I give an interaction to my candidates कि जी आप ऐसे बातचीत करें। वो जो बातचीत करने का एक प्रोसेस है ना, वो उनको मैं कॉन्शियस कभी नहीं करता। आई डोंट टेल देम कि जी सम डिग्निटरी इज कमिंग एंड यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। आई डोंट फीड द क्वेश्चंस टू देम, दे आस्क द क्वेश्चन। मैंने कहा जी आप पूछें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वेश्चन ऐसे वियनरी हो गए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह विलिंग इंशाल्लाह वंस वी रीस्टार्ट द कॉलेज अगेन, और आई विल इनवाइट यू कम ओवर हियर एंड हैव अ गुड इंटरेक्शन विद द कैडेट्स, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये एक हमारा प्रोसेस है, जो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चल रहा है। मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ बीइंग ए होस्ट, आप मुझे थोड़ा सा मौका दे देता हूँ। नहीं, नहीं, वेरी नाइस एक्चुअली। आज का दिन जो है वो आपको सुनने के लिए हमने जो है ना स्पेशली स्पेयर किया हुआ है। और जिस तरीके से आप बताते जा रहे हैं, हर एक आइडिया जो है इट इज़ टू बी रिटन अ ब्लॉग, टू बी रिटन एन आर्टिकल, और बहुत ही आला तरीके से। और डेफिनेटली जब बता बंदा वही सकता है जिसने कोई अचीव किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास माशाल्लाह इतना कुछ अचीव्ड हुआ हुआ है, और आई एम फीलिंग इट ग्रेट टू हैव यू इन दिस वे। कि देखिए, जब एक ऐसे इदारे को रन करने वाले बंदे जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एज अ डेजिग्नेशन नहीं ले रहे हैं, एज अ उसको एक ओहदा नहीं ले रहे हैं, उसको एज अ नौकरी नहीं ले रहे हैं कि ये जी मेरी नौकरी है। इसको ना सिर्फ पैशन, बल्कि ये तो पैशन से भी बढ़ के है कि वो उन बच्चों को आप अपना बच्चा समझें, और उनके साथ आप जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जितना कुछ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अपने बच्चों के साथ भी बंदा बड़ी मुश्किल से के साथ कर सकता है। आई एग्री, एज अ आई एग्री। सर्विसमैन माशाल्लाह से मैं देखता रहता हूँ। मेरे भी एक लंबी लिस्ट है दोस्तों की, दिफाई इदारों में भी और दूसरे इदारों में भी। गवर्नमेंट का जो बंदा है उसकी जो जॉब है, वो एक बड़ी टफ सिचुएशन है। आप कह नहीं सकते कि आपकी कॉल किस टाइम कहाँ के लिए आ जाए। लेकिन इस टाइम जो आपने 24 आवर्स स्पेयर किए हुए हैं अपने इन बच्चों के लिए, तो मेरे ख्याल में कभी-कभी आपकी अपनी बच्चियाँ भी बोलती होंगी कि पापा इतना टाइम तो आपने हमें भी नहीं दिया। Yeah, exactly. You have taken the words of my daughter. Sometimes my wife also she crept, कि जी आप तो बच्चियों की हो गया है। मैंने कहा यार दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट, बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। देखिए जब आपने कुछ चीज़ कंट्रीब्यूट करनी है ना, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जो आपने कहा टाइम मैनेज, तो मेरे पास 24 आवर्स है, 24 को मैंने मैनेज करना है द बेस्ट पॉसिबल वे। और दिस व्हाट अ लेसन आई गिव टू माय कैडेट्स आल्सो, कि अल्लाह ताला आपकी लॉटरी में हर 24 घंटे के बाद से अबाउट 86,400 सेकंड डाल देते हैं। अभी ऑल अप टू यू, अगर एक एक सेकंड को आप यूटिलाइज कर लेंगे, सो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, इट विल पे यू टुमारो। अगर आप उसको ज़ाया कर देंगे तो इट विल गो वेस्टेड। मैं समझता हूँ कि इस नेशन ने अगर मुझ में इन्वेस्ट किया है, फ्रॉम हम्बल कैपेसिटी आई केम बैक ऑल द बैक, from a humble capacity, humble family, came, I would say nation invested in me. They groomed me well, army groomed me well. I've been to leading institution. I've been a trainer also in army. I've been teaching the officers. I've been a selector also in Pakistan army. तो मेरे अंदर जो पाक फौज ने इन्वेस्ट किया है, दिस इज द टाइम दैट आई शुड रीपे टू माई नेशन। अगर मैं उसी तरह के जो कुछ मेरे अंदर मैं समझता हूँ कि क्वालिटीज़ हैं, अगर मैं एक एक क्वालिटी किसी बच्चों में किसी ना किसी चीज़ में डाल दूँ, सम ऑफ देम इंशाल्लाह टुमारो यू विल सी। ये जब बच्चियाँ यहाँ से निकलेंगी ना एफएससी करके, तो यू विल फाइंड द कैडेट्स एवरीवेयर। ये नर्स में भी यही बच्चियाँ होंगी, पीएमए के लिए भी यही ज्वाइन कर रही होंगी, और आई एम प्रेटी श्योर पीएफ कॉलेज में यही बच्चियाँ होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिकॉज दे हैव द विजन, दे द गोल दे हैव बीन सेट, एंड दे हैव बीन ग्रूम्ड एंड ट्रेन्ड दैट वे। क्योंकि आईएसबी में, आईएसबी मजे की बात पता है कि आईएसबी में आई हैव बीन थ्रू दैट आल्सो। आईएसबी इज नॉट टू नॉन रिकमेंड द पीपल। ये बड़ा लोगों के अंदर कि जी आईएसबी सिलेक्ट नहीं करते, नो। वहां पे जो लोग होते हैं ना, दे आर नॉट नॉन रिकमेंडेड, उनको कहते हैं दे आर द सिलेक्टर्स, दे सिलेक्ट द पीपल। आप नॉन रिकमेंड अपनी वजह से होते हैं,
वहां पे तो वो आपके अंदर वो सर्टन एबिलिटीज देख रहे होते हैं। देखिए ये जो लीडरशिप है ना, इट इज एन स्किल। मैं यहीं से आपकी बात आगे चला देता हूँ कि लीडर बेसिकली देखिए तीन किस्म के लीडर्स होते हैं मेरे अपने वीएन में, वो मुझ भी आपके वीएन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट हो। वन इज जो कि अल्लाह की तरफ से इनहेरिटेड होता है, गॉड गिफ्टेड, जैसे पैगम्बर हैं, बुजुर्ग हैं, वो दे आर द बॉर्न लीडर्स, उन पे कोई डाउट नहीं आप कर सकते। दूसरा लीडर होता है जो बाय एनवायरनमेंट बन जाता है, जिसमें यू कैन से ऑल दो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। लियाकत अली खान हमारे लिए आई वुड से नेशनल हीरो, राइट। अगेन अल्लामा इकबाल, द कायदे आजम, राइट। फिर उसके बाद कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, लाइक हिटलर, जो सर्कमस्टांसेस जिनको लीडर बना देते हैं, राइट। ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ लीडर, नेगेटिव पॉजिटिव हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो नंबर नेपोलियन वॉज अ लीडर, राइट, हु कुड परफॉर्म, कुड टेक द नेशन टू दैट पीक सब्सिक्वेंटली, जो भी हुआ उसका हम उसकी बात नहीं। तीसरा जो लीडरशिप है ना, वो क्वालिटीज, वो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बिल्ड की है। वी एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू पॉलिश दोज एबिलिटीज। ये स्किल्स हैं जिनको पॉलिश किया जाता है हर बंदे के अंदर। देखिए मैंने कहा ना कि एक माँ है, घर में बैठती है, एक औरत है, कोई अनएजुकेटेड भी हो, शी इज ऑल्सो अ लीडर बिकॉज शी इज ग्रूमिंग अ किड। एक बच्चे को पैदा करती है, प्रोसेस में उसको ग्रूम करती है, उसको चलना फिरना सिखाती है, खाना सिखाती है, तो उसके अंदर वो लीडरशिप ट्रेड्स हैं, करने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस करती है। सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, लीडरशिप ट्रेड। डिवोशन, लीडरशिप ट्रेड्स। माँ इखलाक सिखाती है, लीडरशिप ट्रेड। द फादर इज द सेम वन, वो सारी स्किल्स बच्चे के अंदर इनबिल्ड होती है। यस, होता क्या है, उन स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। अगर समटाइम्स यू आर लकी, समटाइम्स यू गेट इन द शेप ऑफ पेरेंट्स, द ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने कहा ना रोल मॉडल मिल जाते हैं आपको, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाते हैं जहाँ पे आप ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सो लाइक मी, द मैन इज सिलेक्टेड, या बाकी जो ऑफिसर्स जैसे आर्मी एयरफोर्स में सिलेक्ट होते हैं, दे हैव द सर्टेन बेसिक लीडरशिप ट्रेट्स इन देम, बट दे नीड अ पॉलिशिंग। उनके अंदर वो होती हैं ट्रेड्स, उनको जब पीएमए में डाल दिया जाता है, जेसीपी में डाल दिया जाता है, सब्सिक्वेंटली दोज ट्रेड्स आर पॉलिश्ड। पीएमए जब कहते हैं लीडर बनाता है, वो बेसिकली स्किल्स को पॉलिश करता है, लीडर बनाता नहीं है, स्किल्स उसके अंदर होती हैं। जो कैडेट सेलेक्ट होकर चला गया, उसके अंदर वो लीडर पॉजिटिव स्किल्स पॉजिटिव है, ठीक है। उसको वो फर्दर पॉलिश कर देता है पीएमए। पॉलिश करने के बाद दे बिकम अ लीडर एंड दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ, एंड दे बिकम द कर्नल शेर खान, दे बिकम मेजर अजीज भट्टी, एंड सो मेनी यंग लीडर्स among them, and so many female leaders, so serving generals or retired generals. And I would tell my cadets, okay, you must have that vision that you have to be the leader in any of the capacity. So ये स्किल जो है ना, ये पॉलिश की जाती है। और मेरी जो पेरेंट्स के साथ ऑफ एंड ऑन डिस्कशन होती है ना, मैं कहता हूँ जी, जो लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश करने के लिए इंस्टीट्यूशनल ग्रूमिंग इज मस्ट। वो इंस्टीट्यूशन इज होम ऑल्सो, इनिशियल आपको घर उसको ग्रूम कर रहा होता है, उसके बाद आपका स्कूल ग्रूम करता है, और उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन ग्रूम करते हैं। वो जो आपने बात की थी ना, मैं इसी बात के साथ चलाता हूँ कि सर घर में जो आपके मसले मसाइल चलते होंगे कि जी आप तो टाइम उधर देते, और दिस रियली मैं यही बात पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ। मैंने कहा जी यू डोंट हैव अ टाइम टू गिव टू योर किड्स। अगर आपने बच्चों को अच्छा लीडर ग्रूम करना है, अच्छी पर्सनालिटी ग्रूम करनी है, अच्छा शहरी ग्रूम करना है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Investment is not in the shape of money. Investment is in the shape of time, in the shape of skill. माँ ने भी पॉलिश करना है, फादर ने भी पॉलिश करना है, बहन भाइयों का अपना रोल है, और अबव ऑल द इंस्टीट्यूशन हैज टू प्ले अ रोल। इंस्टीट्यूशन में रोल मॉडल आपके टीचर्स होते हैं। आज कुड बी द कैडेट कॉलेज, राइट, दिस कुड बी द वन, इसलिए बच्चे होते हैं ना, जो कैडेट कॉलेज के बच्चे निकलते हैं, वो कहते हैं यार कैडेट कॉलेज के बच्चे दे हैव बीन सिलेक्टेड। वो पैटर्नाइज नहीं होते, उनकी स्किल को पॉलिश कर दिया जाता है। वो फिजिकली स्टैंडर्ड बेहतर होता है, उनका आईक्यू थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, बिकॉज दे अंडरगो द रिगर्स। अभी जब हमारी बच्चियां, दे आर अंडरगोइंग द रिगर्स। रिगर्स, सुबह टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे परफॉर्म करना है,
the competitors where they have to compete, they have a different exposure. जब आपका exposure हो जाता, अभी एक बच्ची है जो फॉरेन मीडिया चैनल में without any preparation, right, जब इंटरव्यू देती है, that could be the BBC also, CNN also, right, AFP also, तो आप देखें वो जब बच्ची को अप्रिशिएट किया जाता है, एक ऑनर्स एंड रिवॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसका मोरल बूस्टर किधर जाता है. So it is there. So that become a icon for the family. तो मेरी कैडेट्स वही हैं, हो गई हैं अभी. अभी मेरी कैडेट्स off and on, whenever they have exposure, they are ready to, they are volunteer. मुझे अभी मैंने कहा ना, हर कैडेट के अंदर एक स्टोरी है. अभी इनके अंदर क्या किया, एक और चीज बड़ी मजेदार डेवलप की. मैंने कहा जी अभी आप ये करेंगे, एवरी कैडेट्स आर गिवन द असाइनमेंट टू रीड द बुक एंड prepare a summary and present the summary in the morning assembly. Very nice. अभी क्या होता है, एक बच्ची ने किताब पढ़ी, आई हैव अबाउट 140 कैडेट्स, तो वो किताब की वो जो समरी प्रेजेंट करती है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है, 140 बच्चियों ने वो किताब पढ़ ली होती है. सो ऑफ एंड ऑन दिस इज अ रेगुलर फीचर. अभी जब बच्चियां यहाँ से निकलेंगी, अगर वो उसको, आप और मैं भी बुक पढ़ते हैं ना, हम उसकी समरी बयान कर रहे होते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट बयान कर रहे होते हैं कि उसके अंदर ये मॉडल, जो रोल मॉडल था, द हीरो था, वो ये बात कर रहा था. तो वही बच्चियां दे लर्न इट समटाइम, सो दिस इज हाउ द ग्रूमिंग प्रोसेस इज रैपिड. हमने इसको थोड़ा एक्सीलरेट कर दिया. मैंने कहा ना, एक्सीलरेट करने के तरीके डिफरेंट. तो दिस इज इनोवेटिव अप्रोच आई हैव डन इट. सो आई गिव देम अ प्लेटफॉर्म, सो वेयर दे प्रेजेंट, वो एक प्रेजेंटेशन भी होती है. आई गिव असाइनमेंट कि बच्चियां सारी घर गई हैं, प्लीज रीड द बुक्स. फिर मैंने उनको कहा असाइनमेंट, मैंने कहा जी आपने बुक रीड करनी है और आके अपने टैग के साथ प्रेजेंट करनी है लाइब्रेरी के अंदर, सो दैट विल रिमेन अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. तो आर्काइव का हिस्सा बन जाए कि दिस कैडेट हैज प्रेजेंटेड दिस बुक. तो वी हैव नंबर ऑफ बुक्स इन माय लाइब्रेरी व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय कैडेट्स. मैंने कहा जी यू कैन डिवोट दैट बुक टू योर पेरेंट्स. अपना नाम लिखें, नंबर लिखें, सो कैडेट कॉलेज अपना बैच नंबर लिखें, सो दैट बिकम द आर्काइव ऑफ द कैडेट कॉलेज. तो हम उसको इस तरीके से, दिस इज द डिफरेंट वे, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच वी आर डूइंग इट. और ये डेली एक प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना. तो ये हमारा चल रहा है. फिर इसमें मैंने ये जी बात करें. जी प्लीज कंटिन्यू. तो मैंने इसमें ये किया कि मैं इनको ना डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ले जाता हूँ. इट इज पार्ट ऑफ माई एजुकेशनल कम रिक्रिएशनल ट्रिप्स. बच्चे वेट कर रहे होते हैं एंड दे आर वेरी एम्बिशियस ऑन दैट कि जी हमने जाना है. को ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में ले जाऊंगा उनको. आई टुक देम, मैंने क्या बताया था, आई टुक देम नंबर ऑफ टाइम टू पीएम. तो लास्ट कमांड दे इनवाइटेड मी. आई टुक, दे हैड अ गुड एक्सपोजर विद द लेडी ऑफिसर्स, विद द पीएमए ऑफिसर, यंग ऑफिसर्स के साथ, उनके साथ बातचीत की. और एक सेंस ऑफ एलिवेशन होती है. दे आल्सो पुट ऑन द खाकी and that officers also putting on the khaki. They have photographs with them. फिर आई टुक देम आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग. वहाँ पे उन्होंने देखा जहाँ पे ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाता है. बेसिकली आई वाज द लकी वन, आई कमांडेड दैट इंस्टीट्यूशन, सो द पीपल ऑनर मी अलॉट. सो आई वाज द कमांडेंट ओवर देयर. तो मुझे ऑनर कर दें, तो आई टेक देम ओवर देयर. वो मैं लेके गया. उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन जो दी, वो भी बच्चों के अंदर, अच्छा यार ये एक्रोबैटिक्स तो हम भी कर सकते हैं. सो दो दे स्टार्टेड, नाउ वी हैव अ जिम्नास्टिक टीम आल्सो. तो ताइक्वांडो की मैंने कहा बच्चों के, वो द ट्रेनर तो ट्रेन इज डेमोन्स्ट्रेटिंग. मैंने अपने बच्चों को कहा ओके यू परफॉर्म आल्सो देयर. सो आई पुट अ क्लिप ऑन द यूट्यूब एंड इट इज द हाईली पॉपुलर व्यूड क्लिप ऑन द यूट्यूब. सो मेरा ख्याल है कि 1,70,000 के करीब उसका व्यूअरशिप हो चुकी है. सो इट वाज बेसिकली विजिट टू पीएमए, द आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर. वहाँ पे बच्चों ने दे ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड एंड पीपल लाइक टू सी दैट. और ये आप देखें, बच्चों को तो यंग लीडर लोग एक्सेप्ट करते हैं, एम करते हैं. द पर्टिकुलरली जब बच्चों को देखते हैं, दे फील वेरी एलिवेटेड. आप देखें ना, आप अतीक भाई, आप अपनी छोटी बेटी को, सो आई डोंट नो हाउ मेनी किड्स यू हैव, अब आप होप करें, एम करें इंशाल्लाह, अपनी बेटी आफ्टर सम टाइम शी पुट्स ऑन अ खाकी यूनिफॉर्म, पुट ऑन अ बैरेट, पुटिंग ऑन अ बेल्ट, हाउ यू फील दैट, आपको कैसा लगेगा? यू फील, वो जो फीलिंग है ना, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. आई नो दैट फीलिंग.
I know once I saw my daughter putting on the uniform, standing in front of me, right? I was also in uniform and she was also in uniform, right? How elevated I felt it. The same way, वो जो spirit है ना, वो I see in the parents. जब मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, ऑफ एंड ऑन मेरी इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स के साथ। और ये प्रोसेस में आपको एक मजे की बात बताऊँ, जब मैं कैडेट्स का इंटरव्यू करता हूँ, मैं इंटरव्यूज में आई डू इंटरव्यू ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो। दिस इज अ यूनिक फिनोमेना, इट इज नॉट ओनली द कैडेट्स। और वो इंटरव्यू नहीं होता, बेसिकली गपशप होती है। मैं उनका मोटिवेशन लेवल देखना चाहता हूँ कि हाउ मच दे आर विलिंग टू सेट देयर डॉटर्स ऑन अ प्लेटफॉर्म, कि कल वो अपनी बच्ची को क्या देखना चाहते हैं, व्हाट इज देयर विजन, क्या उस विजन के लिए आर दे रेडी टू सेक्रीफाइस द टाइम, द लव एंड अफेक्शन। क्योंकि देखो, एक सेक्रीफाइस आपने करनी है। आप बच्ची को कैडेट कॉलेज में डाल रहे हैं 24 आवर्स के लिए, एट दैट मे बी वी सेंड देम आफ्टर मंथ और सो टू हैव ए वीकेंड एंड दे कम बैक अगेन। सो वो जो टाइम है ना, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप। एज ए फादर यू वंस गो बैक, आप बच्ची को रात को देखते हैं, यू फील सेटिस्फाइड, आप टाइम गुजारे ना गुजारे, बट एक कंटिन्यूस एग्नी होती है आपको वंस योर डॉटर इज नॉट विद यू। वो मोटिवेशन अगर पेरेंट्स के अंदर नहीं है ना, कैरियर नहीं चलता। तो वो एक ब्रेकअप पॉइंट आता है और छोटी बच्चियों के अंदर आता है। मैं उनसे वो एक्सप्लोर करता हूँ कि उसके अंदर वो ब्रेकअप पॉइंट तो नहीं आएगा, आएगा तो आर दे रेडी टू रिकूप दैट, क्या उसके साथ चल सकेंगे। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ, मैं उनका विजन देख लेता हूँ और उस विजन को, बच्चों की मोटिवेशन को देखते हुए देन वी सिलेक्ट दैट कैडेट। उसका फायदा क्या होता है उसका, ये दिस अगेन इनोवेटिव आइडिया, just people watching me or listening me subsequently, they can adopt this ideas. I am very open to platform। मैं कहता हूँ कि मेरे पास आए, जो कुछ मेरे पास है, जो आइडियाज मैं देता हूँ, प्लीज डू अडॉप्ट दोस। मैं आई एम नॉट वेरी कंजर्वेटिव टाइप, मैंने कहा आई वांट टू डिलीवर, मेरे पास एक जो विजन है, मैं हम्बल कैपेसिटी में डिलीवर करना है। तो ये मेरी एक विजन थी। उसका ये हुआ है अभी, जो उस प्रोसेस से जो मैं बच्चियां सिलेक्ट करता हूँ, एक तो मैं मेरिट को फॉलो करता हूँ, ठीक है, और बच्चों की मोटिवेशन लेवल को देखता हूँ, हाउ मच दे आर मोटिवेट। देखिए, मोटिवेशन एक बातों की होती है, एक मोटिवेशन होती है अंदर विल जो होती है टू सेक्रीफाइस, टू रिमेन अवे फ्रॉम द फैमिली, लव एंड अफेक्शन पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए। ये इट्स नॉट इजी टू स्टे अवे, इट्स डिफिकल्ट। मुझे पता है ना, मैंने 4 साल कैडेट कॉलेज में गुजारे हैं एंड वी वर ऑल्सो यंग किड। जब मैट्रिक के बाद बच्चा क्या होता है, 14-15 साल की उम्र में जब हम चले गए थे, आई नो इट। रात को फिर बंदा अकेले में रो भी रहा होता है तकिए में, तो मुंह देखे। तो वो प्रोसेस में क्या कैन दे सस्टेन दैट, उसमें ये होता है, जब मैं इस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया ना, अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है। बच्चियां कुछ जाती हैं, वो शुरू में ही जो नहीं दूर रह सकती पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स नहीं रह सकते कि जी हमारे लिए मसले मसाइल हो गए हैं, इनकी माँ को हार्ट का मसला हो गया, ये भी होता है ना प्रॉब्लम। तो बाप ने इसके सेक्रीफाइस, टॉयलेट, दादा दादी ने तो टॉयलेट कर रहे, दे वांट दे शुड कम बैक, अदरवाइज मेरे पास ड्रॉप आउट रेट नहीं होता। सो दिस इज अ प्रोसेस हाउ वी सेलेक्ट द कैडेट्स। और जब बच्चियां मेरे पास टाइम गुजार जाती हैं ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दे डोंट गो बैक, फिर वो जाना नहीं चाहते। अभी मैं बल्कि कभी फॉर द फन से आई टेल माय कैडेट्स, प्लीज दोज दे आर अनविलिंग टू कंटिन्यू, प्लीज रेज योर हैंड्स, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द न्यू इंडक्शन। क्योंकि मैंने कहा ना कि वी आर वर्किंग इन अ लिमिटेड एनवायरनमेंट एट ए टेम्परेरी कैंपस, वहाँ पे हॉस्टल कम है। जब मेरे पास कैडेट कॉलेज इंशाल्लाह बन जाएगा से विदिन 2 years or so, तो इंशाल्लाह वील हैव अ मच मोर कैपेसिटी एंड आई वांट टू डिलीवर, आई वांट टू कंट्रीब्यूट। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा बच्चियों को ले सके। अभी तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इन्वायरमेंट, एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, स्पेस क्रिएट कर, यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू द पेरेंट्स। ऑफ एंड ऑन पेरेंट्स थोड़ा सा डिसार्ड भी होते हैं कि हमारी बच्ची आई और वी केम ऑल द वे फ्रॉम कराची या गिलगित, एंड कुड नॉट बी सिलेक्टेड। मैं कहता हूँ यार देखिए, आई कैन नॉट, वन थिंग आई कैन नॉट वॉलेट द मेरिट, दिस वन। एक आपने क्राइटेरिया तो रखना है ना सिलेक्शन के लिए। आई वॉन्ट टू डिलीवर, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट, मैं चाहता हूँ सारी बच्चियों को ले लूँ, बट एक क्राइटेरिया तो रखना, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, द लिमिटेड स्पेस। और जब आप लिमिटेड स्पेस कैपेसिटी में करते हैं तो एक क्राइटेरिया लेड ऑन करना पड़ता है। तो क्राइटेरिया माई प्रोसेस वो, इसके साथ साथ मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में बता दूं, पीपल वुड बी इची टू नो
सो द कैड कॉलेज के बाद बहुत सारी चीज़ें, तो डिस्कशन तो मेरी ख़त्म नहीं हो सकती, आई हैव सो मेनी थिंग टू से, बट एनीवे आई जस्ट लाइक टू टेल देम, हमारी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बच्चों की, पहली चीज़ है एज, 12 to 14 years, बिकॉज दैट इज द सेम एज, और वी टेक द क्रेडिट फ्रॉम क्लास 8th। मेरे पास जो एलिजिबिलिटी है फॉर अपीयरिंग इन द एंट्री टेस्ट, इट इज द कैडेट, potential cadet or candidate should be studying in class 7th or must have passed the class 7th. They should be, they should have a pass certificate of class 7th जब मेरे पास कैडेट कॉलेज में ज्वाइन करें, ठीक है, दिस द वन। और इसके अलावा वी हैव 4 papers नॉर्मली, जैसे कैडेट कॉलेज के होते हैं, वन इज फॉर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक, 4 पेपर होते हैं, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ 1-1 घंटे के पेपर होते हैं और 1 दिन में होते हैं, और उसमें कंडक्ट मेरे कैडेट से करते हैं, सीनियर कैडेट दे कंडक्ट द पेपर, वी मेक द पेपर, दो देयर इज नो सेट पैटर्न अवेलेबल, इट इज फ्रॉम द सिलेबस, एंड वी डू सी द क्रिएटिविटी, पोटेंशियल, मैंने कहा पोटेंशियल हम जरूर देखते हैं, असेस करते हैं, और उसमें परसेंटेज कोई नहीं है, पास परसेंटेज, सो मिनिमम ऑल पेपर्स में पास होना जरूरी है, दैट इज 50%। अदरवाइज जो मेरे पास टॉप बच्चियां मेरिट में आती हैं, वी कॉल देम फॉर द इंटरव्यूज में हम उनका देखते हैं, पेरेंट्स को कंडक्ट उनका देखते हैं, एंड वी डू से दर फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो, कि आर दे एबल टू, इतनी फीस से भी ज़्यादा नहीं है हमारी, नॉर्मल जैसे जो कैडेट कॉलेज की फीस होती है वही है, और उसमें बच्चों को हम फाइनली वी ज्वाइन देम। नो एज लिमिट में अभी मेरे पास जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट बच्चों की आती है, इंडक्शन आफ्टर मैट्रिक इन द फर्स्ट ईयर, सो आई एम सॉरी टू से दैट आई एम अनएबल टू टेक दैट बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पेस। तो मैं प्रेफरेंस ये करता हूँ कि मैं बच्चियों को क्लास 8 से लूँ, सो दे कंटिन्यू विद मी फॉर द 5 years सो दैट आई कैन इन्वेस्ट अलॉट ऑन टू दैम। आपको मज़ा वही आता है जब ज़मीन को फर्टाइल करते हैं और उसके बीज देते हैं, प्लो देते हैं, और फर्टिलाइजर्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं, और सब्सिक्वेंटली जब वो फ्लोरिश करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। So इसलिए मे बी after some time, once I have the Cadet College building, which is within the premises of outer fringes of Mardan, so तख्त भाई जहाँ पे हमारी Cadet College बन रहा है, it's a big investment I would say, को 2.5 अरब का प्रोजेक्ट है जो कि केपी के गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इसमें, so about 240 canals with all the facilities we have inshallah, so gymnasium, swimming pool, playing grounds, hockey, football, blah blah blah, right? So we'll have all the facilities including libraries and allied facilities जो भी होगी, and I will have all my staff staying in the college, तो inshallah we'll be able to take more than maybe उस वक्त पे हम फर्स्ट ईयर में बच्चों को ले सके। So और ये एक और क्वेश्चन नॉर्मली द पीपल डू आस्क, इट इज नॉट अ डोमिसाइल बेस्ड, इट इज ओपन मेरिट। ये मैंने हमारी बीओजी में चेयरमैन बीओजी इज सीएम केपी के, एंड वी हैव नंबर ऑफ डिग्निटरीज द पार्ट ऑफ दैट बीओजी। बीओजी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी एलिमेंट्री सेकेंडरी है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है, blah blah blah, and the commandant Punjab Regimental Center, he's a uniform person, he's also part of that. Myself is part of BOG, and non-official members हैं जिसमें फीमेल मेल दोनों हैं, ठीक है, और जो भी इसके टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे आर डिसाइडेड बाय देम। तो ऑफ एंड ऑन मेरी BOG की मीटिंग्स होती रहती हैं सीएम के साथ, तो वी प्लान्ड अनदर मीटिंग मे बी वेरी सून इंशाल्लाह, जिसमें हम फाइनल उनसे रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर वी कीप सेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन for the Cadet College. Otherwise, on using your platform, my message for all the potential candidates, potential cadets, I would say, and the parents, please feel free to ask any of the questions. I am available. My telephone contact number is available. I do take my calls. I do respond to the calls. One, right? My number is on the social media also. गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसके अलावा वी हैव अ वेब पेज www.gccm.edu.pk. My number is available. Just feel free, just call. If you want to visit the Cadet College, you are welcome. We don't have to make a preparation on that. It's just a coordination, right? आप आए, मिले, and give the platform. I give them a time to interact with my cadets. If you feel satisfied, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है, जो मेरे पास एक दफ़ा आता है
तो वो फिर अपनी बच्ची को एटलीस्ट एग्जाम में ज़रूर अपियर करवाता है, बाकी सिलेक्शन होना या ना होना वो अल्लाह ताला की तरफ से। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, और मैं आई टेल यू हमारी बच्चियों में इतना पोटेंशियल है, आई टेल यू सब मार्वलस, सब वंडरफुल पोटेंशियल, बट और दे हैव लॉट ऑफ एम्बिशंस, और मैंने कभी उनके एम्बिशंस को कर्टेल करने की कोशिश नहीं किया, मैं उनको कभी चेक नहीं दिया। यस, आई डू स्टीयर देयर एम्बिशंस कि जी दिस इज अटेनेबल ऑब्जेक्टिव, और वो एम जो सेट करते हैं ना उसके साथ मैं अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स डाल देता हूँ। somebody want to be the international player, उसके लिए देखिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस टीम, you have to be playing at board level, you have to be playing at national level, and then you become subsequently the player at international level। आपने वो छोटे छोटे अटेनेबल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं सेट करेंगे, बट माई क्राइटेरिया इज अ मेरिट। उसमें ये होता है कि अभी जो मेरी जो रोल मॉडल्स है ना कॉलेज के अंदर बन गए हैं, बच्चियों के अंदर रोल मॉडल बन गए हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। सो माय सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द सीनियर कैडेट इज कॉलेज सार्जेंट। सो ये अपॉइंटमेंट हर 6 महीने के बाद हम चेंज करते हैं, एंड इट इज प्योरली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, academic excellence plus physical fitness, blah 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 blah. On that we sit together, faculty हम appointment देती है। So we have number of other appointments, sergeants, corporals, last corporals. These are terms normally used in the military. I adopted that. Being a military person, I adopted these terms for the cadet college. वो हम क्राइटेरिया बेस्ड अपॉइंटमेंट देते हैं। अभी क्या होता है, बच्चों के अंदर वो एम्बिशंस आ गए हैं। No, everybody want to be the college sergeant, right? There's a phenomenon because they put on the applets. एक खूबसूरती यूनिफॉर्म के अंदर आती है, दे नोट कि हाँ अच्छा कितना खूबसूरत लगता है यूनिफॉर्म, हाउ दे डिलीवर, हाउ दे कंडक्ट, हाउ फ्रीक्वेंट दे आर मीटिंग द प्रिंसिपल, राइट, हाउ द पेरेंट्स फील वंस दे नो कि आवर डॉटर इज अ कॉलेज सार्जेंट, राइट। तो फिर डिफरेंट हाउस सार्जेंट्स हैं, तो एक क्राइटेरिया उनको, सो दे हैव द रोल मॉडल्स विद इन दैम। सो जूनियर फैकल्टी है वो दे वांट टू बी द कॉर्पोरल्स, राइट। उससे थर्ड वाली है उनके लिए हमने बना दिया लास्ट कॉर्पोरल्स, दे वांट टू बी एक्सेलिंग एंड दे वांट टू बी लास्ट कॉर्पोरल्स। फिर उनका अल्टीमेट होगा जी वी वांट टू बी द कॉर्पोरल्स। जब सीनियर निकल जाएंगे दे वुड लाइक टू बी द सार्जेंट्स एंड द हाउस सार्जेंट एंड द सब्सिक्वेंटली द कॉलेज सार्जेंट। तो ये एक देखिए आपने रोल मॉडल सेट करने होते हैं, आपने स्टीयर करना होता है। एक गाड़ी को जब तक आप मोटरवे पे डालेंगे नहीं ना तो गाड़ी फ्लाई नहीं करेगी, अच्छी स्पीड से नहीं चलेगी। हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको मोटरवे पे डालना है। तो कैडेट कॉलेज इज बीइंग सेट ऑन अ मोटरवे, inshallah inshallah there will be a platform। So I would say that I being a principal, the brigadier Javid Sarwar, I am galvanizing my resources, I am putting them together, and inshallah I hope so, I pray with my effort, with the prayers of you, Raisa, the prayer of my viewers, the parents, inshallah. This college will be a leading institution in Pakistan, and it has set the pace, alhamdulillah। We are the renowned college। अभी मेरी बच्ची है इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करने के लिए दे आर रेडी, वन। सेकेंडली क्योंकि जब बच्चियां बाहर से लोग लाना शुरू कर दें, अभी मैंने कहा 4 बच्चे मैंने इंडक्ट किए हैं। वन इज कमिंग फ्रॉम कैनेडा, सेकंड इज कमिंग फ्रॉम जापान, थर्ड इज फ्रॉम सऊदी अरेबिया, थर्ड फोर्थ इज फ्रॉम यूएई। आर दो द डॉटर्स ऑफ यूएई अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रही थी, दे वांट टू सेंड देम बैक, दैट टू। मैं मेरे लिए ऑनर की बात ये होती है, कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट ऑफ द मर्दान, एंड दैट टू वन स्मॉल लिटिल बिट कैडेट कॉलेज, एंड दे वांट टू सेंड देयर डॉटर हियर। So this is a great honor for me। So I feel elevated on this, and इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो कैडेट कॉलेज ही फ्लोरिश करेगा, हम लीडरशिप बनाते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। So nice of you, Brigadier Javid Sarwar Saab. This was really the best one talk we had, so quite in detail और बड़ा समझें कि न सिर्फ मोटिवेशनल है बल्कि इंस्पिरेशनल भी है। और जो लाइफ स्टोरीज आपने शेयर की कि किस तरीके से कैडेट्स जो हैं वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से बाहर के लोग जो हमारे पाकिस्तानी बाहर सेटल हैं वो अपनी बच्चियां पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो दिस इज समथिंग एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स योर अचीवमेंट
it reflects your dedication, your commitment, your vision, your mission. And I'm sure that, the day is not far when Pakistani females leadership would be proven nationally and internationally. And definitely this is inshallah. here हम सब हैं जिन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट भी करना है और ज़्यादा इस पे मेहनत भी करनी है और जैसे आपने शुरू में बात की कि एक पढ़ी लिखी बच्ची जो है वो एक पूरी कौम को जो है वो मजबूत बना सकती है तो क्यों ना हम जो है और ऐसे इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड करें ऐसे और जो इंस्टीट्यूशन आपका काम कर रहा है इसको और अच्छे लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाए सपोर्ट किया जाए और नेशनल लेवल के ऊपर ताकि हमारी यही बच्चियां जो हैं वो नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करें और इंटरनेशनली भी परफॉर्म करें यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे आपकी बातों में और एक सीखने को मिली समझने को मिली वो ये है कि देखें ये जो अ, इलाके के डायनामिक्स होते हैं, इलाके के माइंडसेट होते हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होना शुरू होते हैं जब कुछ अच्छा काम, कोई ऐसा पॉज़िटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का काम वहाँ पे हो रहा होता है। तो जैसे कि मर्दान में गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान की एक एडिशन है, आपकी लीडरशिप के अंदर मुझे यकीन है कि ना सिर्फ़ कि वहाँ पे और अच्छा माहौल जो है वो पैदा करने में कंट्रीब्यूट करेगी, न सिर्फ केपीके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा और Inshallah. इस तरह के जो असरात हैं इस तरह के जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत है हमारे मुल्क को इसलिए कि 21वीं सदी के अंदर पाकिस्तान को जो है वो एक वाकई ही एजुकेटेड पीसफुल और प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनने की ज़रूरत है और ये हमारी जनरेशन है ये जनरेशन है जो कि आपकी लीडरशिप के अंडर वो ग्रो करेगी फ्लोरिश करेगी और पाकिस्तान के लिए वो अपनी कंट्रीब्यूशंस करेगी व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच आप लोगों के मेरे ख्याल में बहुत सारे सवालात के जवाबात तो ब्रिगेड साहब ने दे दिए हैं यहाँ पे मुझे एक सवाल नज़र आ रहा था उसको हाईलाइट अगर कर दिया जाए मैं पूछ लेता हूँ ब्रिगेड साहब से कि Why not? Why not? असद जंजुआ ने यहाँ पे एक सवाल किया था वो है कि जी लेट मी रीड इट आउट फॉर यू डू यू थिंक देयर वुड एवर बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल स्टूडेंट्स studying in private colleges or university to go for an exchange program to such cadet colleges? Why not यार ये तो बड़ी अच्छी असद ने बात की है देखो मैंने मैंने आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन मैंने बल्कि ऑलरेडी बातचीत में ही मैंने बात कर दी है कि दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ द कोऑर्डिनेशन राइट I am available. My platform is available for any of the parents, for any school, the college. They must come and visit. There's no problem. देखिए ये एक्सचेंज प्रोग्राम करना जरूरी है उसकी वजह देखिए हम एक मेरी विजन है मे बी आई थिंक सो अल्हम्दुलिल्लाह द पीपल आर लाइक माय विजन एक मैं उस विजन के साथ मैं काम कर रहा हूँ डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाई वी हैव अटेन्ड द इंटरनेशनल फेम विद इन 3 years ऑफ आवर एस्टेब्लिशमेंट और इस कॉलेज को कोई कह नहीं सकता कि ये नया कॉलेज है you can well imagine, media may, you can see that different clips बने हुए वीडियो के we have been covered by the BBC, by CNN, by Voice of America, by Hindus, the Times of India, right? All the leading channels of Pakistan. और अभी भी TRT, yes, Turkish channel. TRT is making a documentary on our college. They already, उस पर बना के ले गए, but due to the corona, slightly there's a delay. कोविड-19 के बाद इंशाल्लाह दैट विल बी इन हियर तो मैं समझता हूँ कि अगर आए एटलीस्ट माय प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल टू एनी स्कूल एंड कॉलेज एनी फैकल्टी फॉर दैट मैटर जस्ट कोऑर्डिनेट एंड कम ओवर वी वुड लाइक टू लव टू हैव द एक्सचेंज प्रोग्राम विद देम एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट एट नेशनल लेवल मैंने कहा मैं तो बच्चों को लेके जाता हूँ आई डू इट एंड आई डू इनवाइट भाई आप आए हमारे पास आए मेरे पास लोकल स्कूल कॉलेजेस दे डू कम द फैकल्टी मेंबर दे डू कम दे वांट टू दे लर्न मैं बल्कि मैं कहता हूँ कि आई एम लर्निंग फ्रॉम यू आउट ऑफ द कम्युनिकेशन आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम से आपसे इतने प्यारे तरीके से आप बात करते हैं आई हैव लर्नड दैट वे यू आर सो हम्बल यू आर सो पोलाइट दैट वे आई एम स्लाइटली हस्की मेरी बातचीत थोड़ी सी तेज होती है बात करने का तरीका तो आई हैव लर्नड आउट ऑफ दिस तो ये लर्निंग प्रोसेस तो खत्म नहीं होता तो एक्सचेंज व्हाई नॉट वी हैव इट आई वुड लव टू हैव दैट
बहुत आला. Viewers, you all are welcome. Your parents are welcome. The people are, heading in institutions. They are welcome to contact the Girls Guide called Mardan. And definitely, if you can visit, I would highly recommend that you must visit and have some inspiration for your students too. And definitely, such kind of exchange programs. I say that, internationally, a lot of money is invested on the exchange programs, and once you have such kind of excellent institutions available in your own country, then why not approach and visit? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए. आखिर में मैं ब्रिगेड साहब की सारी बातें ही देवर दी रिफ्लेक्शन ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस. डेफिनेटली एक बंदा जब एक ऐसी जगह से अपना सफ़र शुरू करता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मैं कहूँगा कि ज़्यादातर वो चीज़ें जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में उस अर्ली एज के अंदर अवेलेबल नहीं थी, आज जो है जब वो आप देखते हैं कि ना सिर्फ आपके बच्चों को बल्कि आपके स्टूडेंट्स को अवेलेबल हैं, तो बंदा और ज़्यादा मोटिवेट होता है कि जिस एक सफ़र को आपने बड़ी हार्डशिप से शुरू किया और फिर उसको आप एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि आप बहुत सारी और ज़िंदगियों को जो है वो सँवारें और उनको जो है ना रोशनी दें. तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप जो है पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए एक अच्छा-सा कोई पैगाम जो है वो कंक्लूजन रिमार्क्स के तौर पे देना चाहें. जी, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आई वुड लाइक ये दिस इज माय वी एंड ऑल्सो दिस इज माय मैसेज फॉर ऑल. देखिए बच्चे कि चाहे मेल एंड फीमेल है, प्लीज सेट योर हाई गोल्स. एक ऑब्जेक्टिव सेट करें लाइफ में. देखिए जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे ना, अपने गोल्स को हाई नहीं रखेंगे ना, अटेन नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है. वो ये ज़रूरी नहीं है कि क्लर्क का बेटा क्लर्क ही बने. क्लर्क के बेटे को भी आर्मी अफसर बनने का हक है. द सेम वे इट इज़ नॉट द बिजनेसमैन का बेटा दुकान पे जाके बैठे, उसको भी मिनिस्टर बनने का पूरा हक है. प्लीज़ सेट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसमें कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. वन थिंग इज द करेक्टर. करेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जब तक करेक्टर आपका ठीक नहीं है ना, द पीपल नॉट बी एबल टू हैव अ गुड आई ऑन टू यू. ठीक है. वो करेक्टर में बहुत सारी चीज़ें, आई विल नॉट गो इनटू द डिस्कशन, फिर ये टॉपिक दोबारा बढ़ता जाएगा. ठीक है. एंड यू अंडरस्टैंड दैट. जिसका जिसको लोग देखें तो मिसाल दे, उसके लिए को पैसे नहीं लगते. उसके लिए पैसे को नहीं लगते. उसमें आपकी डेली डीलिंग है, तो यू हैव टू बी डीलिंग दैट वे. ठीक है. दूसरी चीज़ है अपना इखलाक. इखलाक बुलंद करें. ठीक है. और इखलाक में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो करेक्टर से बेसिकल ट्रेड्स होते हैं ना, कि टॉलरेंस, द पेशेंस, ये दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड लीडर. आपने सुनने का मादा होना चाहिए, डिलीवरी का मादा होना चाहिए, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, डिवोशन. और अबव ऑल जो आपने बात की थी, जो उसको मैं आई वुड लाइक टू अगेन include in my concluding remarks, that is learn to manage the time. Very important. अल्लाह ताला ने डेली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने कहा ना कि अबाउट 86,400 मिनट्स आपको मिल जाते हैं. इफ यू इन्वेस्टेड, दैट इज गोइंग टू पे. राइट. मैं समझता हूँ कि आज मैंने इन्वेस्ट किया while sitting with you about 2 hours, right? That was my investment. If some of the audience, yeah, the viewers, they have learned something, I have invested, that is a sadqa jariya for me. The same way, लर्न टू मैनेज द टाइम. अगर आपने टाइम को मैनेज कर, ये अगर आपने 16 घंटे सो के गुजार दिया तो टाइम तो गुजर जाएगा. अगर मैंने कहा ना, ट्राई टू रिमेन क्लोजर टू द नेचर. उसमें आपने खाना पीना भी है, पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना है, स्कूल के साथ टाइम भी करना है, असाइनमेंट भी करनी है, गेम्स भी खेलनी है. अगर आप लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे ना, इंशाल्लाह, सो यू विल बिकम अ वेरी गुड लीडर. और इसके साथ साथ एक विजन होना जरूरी है. विजन क्या होता है? छोटे बच्चों के लेवल पे तो मैं, बड़े लेवल की मैं बात नहीं करता, बच्चों के लेवल. आपका विजन शुड बी टू प्लान अहेड. प्लानिंग क्या है कि यार मेरा एग्जाम है, मैंने उसकी तैयारी करनी है भाई. अगर आज तैयारी करूंगा तो कल मेरे नंबर आएंगे ना. सिंपल सी बात है. अगर आज मैं फिजिकल फिटनेस के लिए को करूंगा तो कल आई विल बी एबल टू परफॉर्म. राइट. अगर मैं आज स्टेज पे जाके बोलूंगा तो टुमारो आई विल बी द कॉन्फिडेंट लीडर वेयर आई कुड परफॉर्म. इफ आई हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू, मेरे पाँव ना काम पे, मेरे हाथ ना काम पे. अगर मैं आज स्टडी करूंगा तो मेरे अंदर वो विजन आएगा. एंड विजन डज नॉट कम
in one day. It is a continuous, regular learning process. And we have come through the experience and we have come through the reading books, I would say. Even reading newspaper will pay you a lot. और सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करें. दैट इज़ दैट्स अ मैसेज फॉर द यंग लीडर्स. मैं कहूँगा देखिए सोशल मीडिया इज़ वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी गुड. उसके लिए आप टाइम रखें, लिमिटेड टाइम रखें जो आपने उसके लिए रिसर्च के लिए टाइम रखें. और ये टिकटॉक और ब्ला ब्ला जो इस किस्म की चीज़ें जिसमें ऐसी फजूल क्लिप्स अपलोड हुए होते हैं एंड अगर आप उनको देखते हैं एंड यू वेस्ट अ टाइम, यू जस्ट हैव अ फन एंड यू गो टू स्लीप. That is not how we spend our life. And life is ऐसे मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में. Time is money, money is yours. It's all up to you. If you invested, you wasted, right? And if you groom today, if you cultivate today, inshallah, you will reap a better fruit tomorrow. आपकी नस्लें आगे बेहतर चलेंगी. अगर हम आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और ये पेरेंट्स के लिए भी है, प्लीज डू इन्वेस्ट इन योर डॉटर्स. इन्वेस्ट करें. इन्वेस्ट नॉट इन द फॉर्म ऑफ जहेज. आपका जो बच्चियों का जहेज तालीम है और अच्छी तरबियत है. अगर आपने एक अच्छी माँ घर में पैदा कर दी, एक अच्छी बीवी दे दी, एक अच्छी बहन दे दी, राइट, आई टेल यू अल्टीमेटली शी विल बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड शी विल बिकम अ गुड लीडर्स टुमारो. हमारे पास लीडर्स ही लीडर्स होंगी इसमें. ये और ये जिसमें जो इसके साथ कॉन्सेप्ट नॉर्मली हिजाब और बेहिजाबी का भी आता है ना. सो वाइल बीइंग विद इन द हिजाब यू कैन डिलीवर. तो इसमें तो ऐसे कोई ये तो नहीं है. हिजाब का मतलब ये थोड़ी है कि आप दीवार के अंदर बच्चों को बंद करके रख दें, राइट, एंड डोंट लेट देम गो आउट. इसका मतलब ये है कि हम 50% ऑफ मोर देन 50% पॉपुलेशन को ज़ाया कर रहे हैं. अगर हम दरवाजे बंद कर देने हैं और उसको खाली डोमेस्टिक फील्ड पे यूज़ करना है कि हांडी रोटी करे उसके बाद, दीज आर द सर्विसेज विच वी कैन अटेन. आई वुड से कि देखिए बच्चियों को तालीम दें, लेट देम ग्रो एज ए लीडर. जब वो ग्रो करेंगे दे विल बी द एम्प्लॉयर्स, दे विल एम्प्लॉय. ये सर्विसेज आपको मिल जाती हैं वेयर यू कैन एम्प्लॉय वन और लेडी. घर में काम के लिए रख सकते हैं, आप उसको रोजगार दे रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, एक अच्छा लीडर ग्रूम कर रहे हैं. दैट कुड बी गुड एजुकेशनिस्ट, a good bureaucrat, a good technocrat, right? Anybody for that, but good politician too. ठीक है. So let's not take it as a negative. Be very positive in this approach. That is a message to all the parents, all the candidates. I think so. Inshallah, that will be well received. And please remember me in your prayers, Raisa, and it is for all the viewers. Please remember me in your prayers. I want to contribute. Again, if somebody wants to learn, there's an open platform available. Again, I say, Cat College and myself, so we are the open platform. यहाँ पे कोई हम छुपाने वाली बात नहीं करते. Whatever we do, it we present. आए, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, प्लीज कम एंड सीक अ गाइडेंस, लर्न फ्रॉम मी आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस. इंशाल्लाह विल बी एबल टू एक हम अच्छे तरीके से आपका इंस्टीट्यूशन बना के देंगे. ठीक है. आई एम नॉट फॉर दैट कि मैं बहुत ज़्यादा कोई लालच वालिच के चक्कर में नहीं आता हूँ कि मुझे somebody comes and invest that way in a way of money. I can my counseling would be free of cost. Please come and do discuss with me. Inshallah, we'll be able to. Even my platform is available. I like the counseling also. मैं पेरेंट्स के साथ ऑफ एंड ऑन कैडेट्स के डिस्कशन करता हूँ, बिहेवियर पे डिस्कशन करता रहता हूँ. दैट इज माय एक्सपीरियंस. मैंने कहा ना कि मैंने आउट ऑफ द लाइफ आई हैव लर्नड अ लॉट. I've been a selector, I've been the trainer also, I've been grooming the officers. अभी तो न्यू जनरेशन को मैं ग्रूम करता हूँ. दे आर बेटर देन मोर देन ऑफिसर्स माशाल्लाह. तो अगर मुझसे कोई मेरी हम्बल कैपेसिटी में आई एम अवेलेबल ऑलवेज. थैंक यू. So kind of you, dear Brigadier Javid Sarwar Saab, such a enlightening, conversation. And I would request you for the future as well, for our audience, once a month at least. If there can be more, we can see that too. But once a month at least, we want you to have the live session with us on different topics. We will select. Like have to go in detail about the character building. We have to go in detail about the time management. We have to know more about like your experiences as the selector in ISSB and so on. So we'll just select one topic with the mutual understanding.
and then we'll come back with our audience and we will definitely have the conversation. इंशाल्लाह Sir, जी, इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में मैं सब ऑडियंस की तरफ, व्यूअर्स की तरफ से भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सारा टाइम निकाला, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बयान की। सर, आखिर में हम सब मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम।